السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ سب خیر خیرت ہے؟ آج کے ولاگ میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں کراچی کے ہوٹل بیچ لگژری میں، جہاں پر آج ایک کتاب کی رونمائی ہے۔ ہمارے محسن ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب، جن کا تعلق وزیرستان سے ہے، انہوں نے سندھ کے مسائل پر اور سندھ کی خوبصورتیوں پر اچھی شاعری کی ہے۔ آج یہ ان کا 11واں کتاب ہے۔ آج جو کتاب جس کی رونمائی ہو رہی ہے، یہ ان کا 11واں کتاب ہے، جو انگلش کی پوئٹری ہے، گرانڈ کمپلیکیشن۔ آج اس کی رونمائی ہے۔ آؤ تو مل کر چلیں اس پروگرام میں اور اس پروگرام کو انجوائے کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ نئے سرے سے داخلہ لیں انگلش پڑھنے کے لیے، تو ہم کتاب کو سمجھ سکیں گے، ادروائز تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آج کا پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے
وہ بیسیکلی ڈاکٹر صادق اللہ صاحب کے بک جو ہے گرانٹ کمپلیکیشن کی جو ہے آج سیریمنی ہے. اس میں میرے بہت سارے دوست جو ہیں آئے ہیں. سائیں شبیر رحمان شاہ صاحب آئے ہیں, سرکی صاحب آئے ہیں, آغا ظفر صاحب آئے ہیں, میرے دوست پیارے اسحاق سمرو صاحب بھی آئے ہیں, اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹر منائٹی وہ بھی موجود ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میں میڈم مصباح کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اس کے ساتھ جتنے بھی مہمان ہیں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں. ہماری سب سے بڑی لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس آج سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بھی موجود ہیں. اس کا اردو ترجمہ تو یہ ہے, سندھ جو ہے ہمیشہ شاد و آباد رہے. اور اس کے علاوہ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے پورے عالم اسلام کے لیے جو ہے وہ دعا کی ہے کہ پورے عالم کو اللہ تعالیٰ کی رکھے. اس کا انگریزی میں ترجمہ تو میں کہوں گا اسحاق سمر صاحب کو کہ وہ کریں گے. اب میں پروگرام کی باقاعدہ آغاز کے لیے سب سے پہلے محترم ڈاکٹر صادق اللہ صاحب, یہ جو ہم جہاں پہ کھڑے ہیں سطح سمندر سے اوپر جس دھرتی پہ ہم کھڑے ہیں, یہ دھرتی ہزاروں سال پرانی ہے, اور اس دھرتی نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہاں پہ سندھ میں ویلکم بھی کیا ہے اور وہ مرج بھی کیا ہے. ہمارے اس خطے میں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, بمبئی سے لے کے مکران تک, مکران سے لے کے ملتان تک, ملتان سے لے کے بمبئی تک, سندھ جو ہے اتنا بڑا تھا کہ اور دنیا میں یہی ایک نام چلتے تھے, ایک سندھ اور ایک ہند. تو اس میں جب انگریزوں کی حکومت آئی تو اس وقت میں سب سے پہلے جو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ, جو سندھ کے سب سے بڑے بلکہ پوری دنیا کے بڑے شاعر ہیں, اس کا سندھی میں ترجمہ چھپوایا ڈاکٹر سولری نے, جس کا بہت بڑا احسان ہے سندھ کے اوپر. اس کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے ایچ ٹی لیمبرک کا, جنہوں نے پورے سندھ پہ جو ہے وہ کتابیں لکھی. اس کے بعد ہمارے پاس میں نے کہا نا یہ سطح سمندر جو ہے اگر درائے سندھ یہاں نہ آئے اور اگر 5000 کیوسک سے بھی کم پانی آ جائے تو پورا علاقہ جو ہے نا پیچھے ڈوبنے لگتا ہے. اور اگر درائے سندھ نہ ہو تو یہ سمندر جو ہے نا اس پورے خطے کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے. تو وزیرستان کا ایک علاقہ جو ہم بچپن میں یا کافی جوانی میں بھی ہم سنتے تھے کہ علاقہ گیر ہے, وہاں جو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اب وہ اللہ کی مہربانی سے جو ہے پاکستان کا حصہ بھی ہے. اور تو وہاں سے جنم لینے والے ایک ایسی شخصیت جس نے سب سے پہلے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی. میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خشک طریقے سے جو سی ایس ایس کا جو بہت ہی ٹف جو ہے ایگزامینیشن ہوتا ہے تو وہ پاس کیا. اس کے بعد پھر کسٹم میں اپائنٹ ہوئے. پھر مختلف مراحل سے گزرتے وہ جو ہیں پھر ہمارے حیدرآباد میں آئے. تو میں نے کہا کہ سندھ جو ہے وہ ولیوں کا, درویشوں کا اور بڑے بڑے ناموں کا صوبہ ہے. تو وہ جب حیدرآباد میں آئے دریائے سندھ کے ساتھ, یہاں پہ سمندر ہے تو وہاں پہ دریائے سندھ ہے, اور وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, اور وہاں کی جو ٹھنڈی سڑک, ہیر آباد بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ہمارے جمیل ہاشمی صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ ہیر اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے ہوا ہے اس کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے جو وقت گزارا اور اپنی سرکاری جاب کے ساتھ پھر سندھ کے چپے چپے کا بھی انہوں نے جو ہے وزٹ کیا. اور اس کو پھر انہوں نے جو ایک شاعری تو ان کی 11 بکس پہ ہے انگریزی میں, لیکن ایک خاص شاعری جو تھی وہ انہوں نے پوئٹری جو تھی انہوں نے سندھ پہ کی, اور اس کا جو نام دیا اس کا نام دیا مٹھو دریا.
تو مٹھو دریا اور گرانڈ کمپلیکیشن کے جو رائٹر ہیں میں اور ڈائریکٹر ہیں کسٹمز اکیڈمی میں ڈاکٹر صادق اللہ صاحب کو گزارش کرتا ہوں صاحب کتاب کو اسٹیج پہ آ جائے. ڈاکٹر صادق اللہ صاحب کو آپ کی بھرپور تاڑیوں میں. سندھ کی دو میں کشور کمار صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اسٹیج پر آ جائیں اگر کہیں پہ بھی ہو. سندھ میں دو بہت بڑے نام ہیں علم کے حوالے سے. علم کے حوالے سے اور اس کے علاوہ وہ جو ہیں ان لوگوں نے تعلیم کے لیے بہت بڑی خدمات سر انجام دیں. ان میں دو بہت بڑے نام ہیں سندھ سے. ایک ہے ڈاکٹر غلام علی علانہ جو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہیں غلام علی علانہ جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے فرزند تھے پیار علی علانہ صاحب اور ان کی بہن انیتا غلام علی. یہ وہ خاندان ہے جس نے پیار علی علانہ نے سندھ میں پہلی دفعہ سندھ تھرو سینچریز سے کے نام سے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا تھا. اور ان دونوں خاندانوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر غلام علی علانہ صاحب کے جی علانہ اور غلام علی علانہ کے نواسے ہمارے پاس موجود ہیں. جی علانہ صاحب جو ہیں وہ وائس چانسلر رہے سندھ یونیورسٹی کے, وائس چانسلر رہے علامہ اقبال یونیورسٹی کے سندھالا جی کے. ان کی بہت بڑی خدمات ہیں, بہت بڑی بکس لکھی ہیں انہوں نے. اسی خاندان سے غلام علی علانہ صاحب جو ہے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نانا غلام علی خان وہ بھی جو ہے اور ان کی جو خالہ جو انیتا غلام علی وہ بھی جو ہے وہ بھی بڑی تعلیم کی ماہر تھی. تو آج ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس پروگرام کی صدارت کے لیے ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کو آپ کی بھرپور تعلیم ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے. سائیں جو تقریب سائیں جن جو ماموں آئے سائیں پیار علی علانہ صاحب غلام علی علانہ صاحب جو سائنٹسٹ جو پاکستان میں چیف خلیفو ان جو نواسو आहे سائیں انیتا غلام علی جو سائیں نہ اچھا ساری سر سائیں پیار علی علانہ تمام हिकिड़ो प्यारो इंसान हुयो. तइलीम लाइ हुनजी वॾियूं ख़िदमतूं हुयूं. हाणे मां गुज़ारिश कंदुसि स्टील मिल में 40 सालनि ताईं ख़िदमत सर अंजाम ॾिनी. साईं सोशल वर्क में उन खां अलावा पब्लिकेशन साईं जन जेको आहे हलाईंदा आहिनि. उन खां अलावा ख़ासि तौर ते मुंहिंजी बिरादरी सैद बिरादरीअ सां बि साईं जो तमामु घणो जेको आहे सो पंहिंजो कमु आहे साईं उन सां बि तमामु घणो कमु कंदा रहिया आहिनि बिरादरीअ जे हवाले सां. मां साईं शबीर अहमद शाह साहिब जिन खे गुज़ारिश कंदुसि त उहे स्टेज ते अचनि. सिंध एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन तमामु पुरानी ऑर्गेनाइजेशन आहे. 1983, 84, 82, 81 में जॾहिं शागिर्द तंज़ीमुनि ते पाबंदी लॻी त उन घुट ऐं ॿूसट जे माहौल में असां पंहिंजे कम जो जी शुरूआति कई. ऐं असां 1981 में पंहिंजे इलाइक़े जी वाद तंज़ीम हुआसीं जेके रजिस्टर्ड हुआसीं ऐं अञा ताईं बि अलाह जी महिरबानी सां रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आहे. उन ई ऑर्गेनाइजेशन खे हमेशह जेको आहे सो अॻिते वधाइण में मुंहिंजो दोस्त इसाक सुमर साहिब जो बि हथु आहे. पर अहिड़ो हिकिड़ो दोस्त जेको मूंसां हर वक़्तु बाहि ॿेली रहियो आहे जानी माली तोड़े हर लिहाज़ खां. ऐं मुंहिंजो तमामु प्यारो दोस्त ऐं सिंध एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन जो चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरम तुफ़ैल अहमद भुट साहिब खे गुज़ारिश आहे स्टेज ते अचनि. आगा शेर अफजल खान साहब. साईं जिन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के पारखू हैं. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को बहुत उन्होंने जो है स्टडी किया है, पढ़ा है, समझा है और लोगों को भी समझाया है. और मुख्तलिफ किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं.
हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ इधर मौजूद हैं। मैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के छोटे भाई और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश में लिटरेचर में एमए करने वाले सिंध के पहले शख्सियत सर शाहनवाज भुट्टो के दूसरे बेटे नवाब सिकंदर खान भुट्टो का नवासा हमारे पास हैदराबाद साहब मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम हैदर अब्बास को कि वो आएँ और स्टेज पे बैठें। मोहतरम हैदराबाद साहब, मैं हैदराबाद से आने वाले सारे दोस्तों को वेलकम कहता हूं। तकरीब का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक से होगा और उससे मैं गुजारिश करूंगा आगा शेर अफजल खान साहब को कि वो आए और तिलावत कलाम पाक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار عالم کے نام سے کہ جو نہایت رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے. یہ آیہ مبارکہ سورہ والسماء سے ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ مخاطب ہوتا ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اے رسول پاک مجھے قسم ہے مینا برساتے ہوئے آسمان کی، اور پھر مجھے قسم ہے اس دھرتی کے اس وقت پھٹنے کی کہ جس وقت وہ کونپل اگ رہی ہوتی ہے، اس پھٹتی ہوئی جگہ کی قسم، دھرتی کی اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ بے شک ایک جچا ہوا قول ہے، یہ بے شک ایک جچی تلی بات ہے اور یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں. اے رسول پاک یہ تمہارے خلاف کوئی چال چل رہے ہیں اور میں بھی ان کافرین کے لیے اپنی طرف سے ایک چال چل رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. उन बैद असां किताब जी रुनमाई जे हवाले सां असां वटि नामवर कंपेयर पिर सैयद अची वयूं आहिनि. उहे ईंदियूं ऐं प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदियूं. पिर सैयद साहबा. Thank you so much. अवल नाम अलहाजो जो ॾींदड़ ॾे हिसारे ॾेई न पचारे मड़निया महिरबान. अस्सलाम वालेकुम. मुंहिंजी तबियत थोड़ी ख़राब है, सो डोंट माइंड दैट. गले में सूर है ऐं जेको वायरल है उन वजह सां थोड़ी तबियत ख़राब है. बहरहाल पाण सभु हिते गॾु थिया आहियूं ऐं हिकिड़ी गैदरिंग थी आहे, ॾाढी ख़ूबसूरत गैदरिंग.
पर चयो वेंदो आहे त का बि जेका शइ थींदी आहे दे शुड बी अ रीज़न बिहाइंड दिस, मतिलबु गॾु थियण जो हिकु रीज़न हूंदो आहे या को न को रीज़न ज़रूरु हूंदो आहे। तव्हांखे पहिरीं आगाह कंदी हलां त अॼु जी गॾिजाणी जो रीज़न छा आहे, असां सभु अॼु गॾु छो थिया आहियूं। छो जो अक्सर असां कन्फ्यूज़न में हूंदा आहियूं, असांखे ख़बर नाहे हूंदी, पर तव्हां जेके मोज़िज़ महिमान असांजे आॾो अची चुका आहिनि, तमामु ख़ूबसूरत महिमान मुंहिंजे आॾो वेठल आहिनि, तमामु ख़ूबसूरत लॻी रहिया आहिनि, ऐं सभिनी जी तारीफ़ करणु चाहींदसि। जेके बि मुंहिंजा वॾा आहिनि उहे ॾाढा ख़ूबसूरत लॻी रहिया आहिनि, हैंडसम लॻी रहिया आहिनि, जेके मुंहिंजूं भेणूं आहिनि उहे ॾाढी प्यारियूं लॻी रहियूं आहिनि माशाल्लाह। चवंदा आहिनि त तारीफ़ कजे तॾहिं मज़ो ईंदो आहे। मूं तव्हांजी तारीफ़ कई आहे, ताड़ियूं पंहिंजे लाइ वॼाए छॾियो, ॿिए लाइ न वॼायो खणी, पंहिंजे लाइ ताड़ियूं जेके आहिनि उहे वॼणु खपनि, न त ईअं मज़ो नाहे ईंदो इवेंट में जेसि ताईं ताड़ियूं न आहिनि वॼंदियूं। ओके अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है ना वो मेजॉरिटी उर्दू स्पीकिंग की है, तो मैं उर्दू में बात करती हूँ क्योंकि मुझे उर्दू में कहा गया है कि बात करनी है। वैसे हमारी जो मदर टंग है वो सिंधी है और वी ऑल आर लिविंग इन सिंध, तो आई थिंक सबको जो है ना वो सिंधी समझ में आनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी एक अजीब सा अलमिया है हमारे पास, सिंधी बहुत कम लोगों को समझ में आती है। हालांकि यहाँ पे मतलब हमारी इतनी पुश्तियाँ जो हैं वो पैदा हुई हैं, चलती रही हैं, लेकिन स्टिल हमें जो है वो सिंधी समझने में बड़ा मसला होता है, हालांकि वी आर लिविंग इन सिंध। बाय द वे मैं पर्पस बताती चलूँ कि हम यहाँ पे गैदर क्यों हुए हैं, हमारी ये गैदरिंग क्यों हुई है। पहला जो रीज़न है वो है कि सर सादिकुल्लाह खान वज़ीर साहब की जो है वो बुक की इनॉग्रेशन है। सर सादिकुल्लाह खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और ये उनकी जो है वो 11 बुक है और उनकी जो है वो हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मैं बुक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, बुक में क्या लिखा हुआ है। और सर ने जो 11 बुक्स लिखी हैं उनके बारे में भी कुछ मैं बताती चलूँ। सर की जो फर्स्ट बुक जो मैंने इनॉग्रेट करवाई थी वो थी लास्ट इंक, और वो बहुत ही खूबसूरत किताब थी जिसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी। सबसे ज़्यादा मुझे जो फैक्टर जो अट्रैक्टिव लगा वो ये था कि सर ने कल्चर को बहुत ज़्यादा लिखा है, हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा लिखा है, लव, रोमांस, कल्चर, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन कंडीशन को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। उसके बाद जो मैंने सेकंड बुक की इनॉग्रेशन करवाई थी सर की, वो थी मिठो दरिया। मिठो दरिया वॉज द ऑल अबाउट सिंध। उसमें सिंध की जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, सिंध की जो हिस्ट्री है, हालांकि मैं जब वो चीज़ें पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था और ये चीज़ महसूस हो रही थी कि ये तो मैंने देखा ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी। जिस तरह से सर ने अपनी फीलिंग्स उस पर बयां की थी, उसमें लिखा था, इतना खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था। मिठो दरिया उसका नाम था। उसके बाद मिठो दरिया की ट्रांसलेशन भी आई थी सिंधी में। वो ट्रांसलेशन जो थी वो सर अली आकाश साहब ने की थी। सर अली आकाश जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिंध के बहुत बड़े शायर हैं और उनका बहुत बड़ा नाम है, फ़िलासफ़र हैं। उन्होंने बहुत सी अच्छी जो हैं वो किताबें हमें दी हैं जो हमें बहुत ही कह सकती हूँ कि ज़िंदगी गुजारने का एक ढंग देती हैं। उन्होंने इस किताब को ट्रांसलेट किया था। और मैं एक अच्छी बात आप सबको बताती चलूँ कि जब मैंने सर से पूछा, क्योंकि इनॉग्रेशन में थे, तो मैंने सर से पूछा कि सर क्या रीज़न है कि आपने सर सादिकुल्लाह खान वज़ीर साहब की जो है वो किताब की ट्रांसलेशन भी की है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक चीज़ बड़ी अपीलिंग लगी, अट्रैक्टिव लगी। वो बात ये थी कि सर सादिकुल्लाह खान वज़ीर साहब वज़ीरिस्तान से बिलोंग करते हैं, सिंध से बिलोंग नहीं करते। यहाँ पे अपनी सर्विसेज के थ्रू यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप सबको पता है सिविल सर्विसेज में जब हम होते हैं तो अलग अलग जगह पे पूरे ऑल ओवर द सिंध जो है वो हमें कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत चीज़ भी यही है सिविल सर्विसेज की या CSS की, मज़ा आता है सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए, कल्चर को देखते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों के ओपिनियन जानते हुए। तो सर की यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई और सर हैदराबाद में बहुत ज़्यादा रहे हैं। सर से जब भी बात करते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर हैदराबाद की इतनी तारीफ़ें करते हैं, इतनी तारीफ़ें करते हैं, कहते हैं बस हैदराबाद हैदराबाद है, हैदराबाद की हवाएं, हैदराबाद की चूड़ियाँ,
सर हैदराबाद की चूड़ियाँ देखी हैं आपने? हैदराबाद की चूड़ियाँ बड़ी मशहूर है। हैदराबाद की हवाएं तो मशहूर हैं ही हैं, लेकिन हैदराबाद की चूड़ियाँ भी बड़ी मशहूर है और हैदराबाद पूरा ही खूबसूरत है। जिनका भी हैदराबाद शहर है, बल्कि मेरा भी जो शहर है वो हैदराबाद है और मैं बहुत अरसा हैदराबाद में रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, पुरअमन, और वहाँ पे बड़ा इंजॉय करता है बंदा। यहाँ पे इतनी वो होती है ना, मतलब सडनली इतनी, सबसे ज़्यादा कराची में ट्रैफिक बहुत तंग करती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ये चीज़ होती नहीं है, हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए और पहुँच भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। सर ने हैदराबाद के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मे भी लोगों को नहीं पता, सर ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। तो सर अली आकाश का ये जवाब मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तभी मैंने यहाँ पे शेयर किया कि सर ने कहा कि सर वज़ीरिस्तान से बिलोंग करते हैं और लिख सिंध पे रहे हैं। क्या बात है सर। मैडम सबीन साहिबा, हैदराबाद की सिंध की बात हो रही है, आप तो सुने ना, आप तो मतलब बड़ी शख्सियत है हैदराबाद की, आपको तो सुनना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सुन रही हूँ। जी नाज नहीं, वो तो सुन रही है ना, वो सुन रही है, वो बहुत ही मज़े से सुन रही है, बहुत ही इंजॉय करके सुन रही है। तो हाँ, माशाल्लाह सर भी हैदराबाद के हैं। हैदराबाद के काफ़ी लोग आए। एग्जैक्टली सर तो हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, सो बाय द वे ये सारी चीज़ें थी जो सर के इंट्रोडक्शन में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं मिठो दरिया के बारे में बात कर रही थी, तो मिठो दरिया में हर चीज़ लिखी हुई है। सिंधी लोगों के बारे में बड़ा लिखा हुआ है कि सिंधी लोग कितने प्यारे हैं, मेहमान नवाज हैं। मैंने जब सर से बात की थी कि सर सिंधी लोगों में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगती है, फीलिंग लगती है, कहते हैं जहाँ भी जाते हैं ना ऐसे झुक के मिलते हैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे, और ये सवाल सच है, हम झुक के मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि अजरक का तोहफ़ा ज़रूर देते हैं, टोपी का तोहफ़ा जो है ना वो हम ज़रूर देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ अगर कोई गेस्ट आया हुआ है तो हमें उनको ऑनर देना चाहिए, हमें उनको इज्जत देनी चाहिए। ये सारा इंट्रोडक्शन था मिठो दरिया का। अब अगर मैं अभी बुक की जो इस बुक की इनोग्रेशन है, मैं उस बुक पे आती हूँ, तो ये बुक जो है वो मेरे सामने, इस बुक का उन्वान जो है वो है ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन। तो इसमें भी बड़ी अच्छी बात सर ने कही। मैंने कहा सर ये ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन क्या मकसद, मतलब क्यों लिखा है? तो ही सेड कि मैंने बस कर दी, मैंने मतलब जैसे नहीं हम बोलते हैं स्पेशली मैं अगर सिंधी में बताऊँ बस दंग करे चलो जेको भी लिखो हो दंग आयो, तो सर ने वही जवाब दिया, बस कर दी मैंने। मतलब इतना जो भी मुझे समझ आया, जो भी थिंकिंग थी, जो थॉट्स थी, वो मैंने सारी इसमें लिखी है, वो सारी इसमें रिटन है और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिटन है। और जब मैंने प्रीफेस पढ़ा तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्टिव ये लगी कि सर ने हिस्ट्री को बड़ा टच किया हुआ है इसमें, और वो भी पाम ज़रिए। वैसे मजमून लिखना बड़ा आसान होता है, पोइट्री लिखना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। और सर की जो पोइट्री लिखी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही मुश्किल अल्फाज में लिखी हुई है, इंग्लिश बड़ी टफ है। अक्सर दफ़ा जब मैं ये बुक को खोलती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। डिक्शनरी की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि वर्ड्स जो है ना वो बड़े डिफ़िकल्ट लिखे हुए हैं, मुश्किल लिखे हुए हैं, और प्रोनाउंस करते हुए भी डर लगता है मुझे। मैंने एक पोम सर की पढ़ी थी, सर की इजाज़त से, फिर सर को याद होगा, सर को मैंने पूरी पढ़ के दिखाई थी, सर एम आई राइट, मैं सही पढ़ रही हूँ? सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम्बली कहा, हाँ बच्चे सही पढ़ रही हो आप सही से पढ़ा है आपने। तो ये सारा ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन में लिखा हुआ है, ह्यूमन कंडीशन में लिखा हुआ है, ह्यूमन कंडीशन लिखा हुआ है, उसके अलावा रोमांस लिखा हुआ है, लव के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सर की बड़ी खूबसूरत बात ये है कि सर जो है ना वो मोहब्बत को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। शायर की ये बात ही तो खूबसूरत होती है, शायरी की बात यही तो खूबसूरत होती है कि वो मोहब्बत को बहुत ही अलग एंगल से देखता है और अलग एंगल से इसको डिफाइन भी करता है, और सर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिफाइन भी किया हुआ है। तो मैं चाह रही हूँ कि जिनकी बुक है, जिनकी किताब है, जो खालिक हैं किताब के, वो स्टेज पे आएँ और वो कुछ बुक के बारे में बताएं हमें। आपकी ज़ोरदार तालियों में सर सादिक
inauguration, I know that. تھینک یو پیرا، آپ نے اتنی اچھی باتیں کی کہ ابھی مجھے اپنے بارے میں ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ وٹ شوڈ آئی سے اباؤٹ مائی سیلف. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل کہ اتنے لرنڈ لوگ، اتنے لرنڈ یہاں پہ جو آڈینس کو میں ان کو نہیں کہوں گا، یہ سارے میرے دوست ہیں، سارے میرے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میں میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہے، جن کے ساتھ ہم کسی نہ کسی فارم میں وی ہیو بین ٹوگیدر. حیدرآباد سے آنے والوں کو اسپیشلی میں خوش آمدید کہوں گا. دے آر دیئر، انہوں نے آل دا وے ٹریول کیا. حیدرآباد سے مجھے آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن مجھے ایسا ہوا ہے کہ ایز اف آئی ایم بینشڈ فرام حیدرآباد. لیکن آئی ول ڈیفینیٹلی وزٹ بیک، کیونکہ ان کی محبت مجھے اور ان کو میرے پاس کھینچ کے لے آتی ہے. آئی ول ڈیفینیٹلی سے کہ حیدرآباد، آئی آلویز کالڈ حیدرآباد ایز مائی سیکنڈ ہوم. میں کبھی بھی جب کبھی اسلام آباد جاتا تھا، whenever I go somewhere، تو حیدرآباد انٹر ہوتے ہوئے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. ڈیفینیٹلی ایک شہر کہ صرف وہ ایک انوائرمنٹ ہی نہیں ہوتا، وہ جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے ایک محبت کرتے ہیں، وہی اس شہر کی ساری ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے وہ کتنا ریلیونٹ ہے. ویل اگین آئی ول سے کہ آئی ایم ناؤ ان کراچی، اور میں یہ کہوں گا کہ ابھی کراچی سے بھی مجھے اتنی ہی محبت ہو رہی ہے، اور اس وقت مجھے یہ خوف ہو رہا ہے کہ کراچی سے جا کے پھر میں کیا کروں گا کہ ایک محبت آپ سے چھوٹ جائے اور آپ سے پھر اگلی ایک محبت بھی آپ کو لگے کہ لیکن وی آر اراؤنڈ. سو اگین آئی تھینک یو. میرے سامنے بہت معزز ہمارے دوست ہیں. لٹریچر کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ لٹریچر جنرلی، یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، میں لکھتا رہا ہوں، اور میں جنرلی پوئٹری لکھتا ہوں، اور پوئٹری میں ڈے ٹو ڈے جو چیزیں، جو امپریشنز ہوتے ہیں، ان امپریشنز کو ہی میں لکھتا ہوں. اس میں پھر ہسٹری بھی ہے، کلچر بھی ہے، لیکن پرائمریلی جس چیز کو میں ایڈریس کرتا ہوں وہ ہیومن کنڈیشن ہے کہ وہاں کیا ہے اور کیا حالات. پھر وہاں کی ایک ہسٹری ہے، وہاں کا ایک کلچر ہے. سندھ میرے لیے ایک ایکسپلوریشن رہا ہے، کیونکہ جو سندھ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اور جو سندھ پھر آ کے ہم نے دیکھا تو وہ مختلف ایک سندھ تھا، اور میرے لیے ایک ڈیپ انگیجمنٹ رہی ہے آل دیز ایئرز کہ میں بائی چوائس پھر وہاں پہ رہا. ہمارا نارمل ٹینیور 1.5-2 سال کا ہوتا ہے. سو آئی اسپینڈ 3.5 years اینڈ آئی اسٹل سے کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سندھ اینڈ سندھ آلسو ڈیفینیٹلی کراچی از سندھ. کراچی سے بھی میری اتنی ہی ایک اٹیچمنٹ اور ایک محبت ہے. بک میں بہت زیادہ اس کی ریویو میں نہیں چاہوں گا کہ میں نے کتاب میں کیا لکھا. مختلف ٹاپکس اس میں آتے رہے ہیں، اس میں کلچر بھی ہے، اس میں اسٹیٹکس بھی ہیں، اس میں مختلف ایکسپریشنز بھی ہیں. میں صرف اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس مائل سٹون. میں اس جنریشن کے لیے جو اسپیشلی جو ایک یوتھ ہے، یوتھ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں، اور لٹریچر کو ہم وہاں سے لے آئیں، اس ایریا سے ہم آگے لے آئیں کہ جہاں پہ لوگوں نے لٹریچر کو ایک طرف رکھا ہوا ہے اور اس کو بھول چکے ہوئے ہیں. وہ اس کو پڑھ ہی نہیں رہے کہ یار یہ کتاب تو میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ اس کتاب کے ساتھ تو میں کنیکٹ اور ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوں. اس کو کیسے ہم ایک ماڈرن ڈکشن میں لے آئیں تاکہ وہ جو ایک جنریشن ہے، جو اس وقت کے جنریشن کے، وہ وہاں اس کے ساتھ ریلیٹ کرے، اور اس کی جو ایموشن ہے وہ بھی ایک ایموشنز کیری کر رہا ہے. یہ ایموشنز 100 سال پہلے نہیں تھے کہ اس وقت تھے، اور آج کل ایموشنز نہیں ہیں. آج کل وہ ایک بہت بڑے کمپلیکس دور سے گزر رہے ہیں، ایک بہت بڑی مشکل ایک ٹائم سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ایک ویلیوز کی ایک ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے. یہاں پہ فیملی ویلیوز ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ کا پرانا کلچر بالکل ایک چیلنج کا سامنا ہے اس کو. اب اس چیلنج کو اس نے کیسے فیس کرنا ہے. پھر ایک لینگویج کی بات آتی ہے. مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ انگریزی میں لکھتے ہیں، آپ کسی اور اپنی زبانیں جو ہماری ہیں، اردو ہماری زبان ہے، میری اپنی پشتو لینگویج ہے یا سندھی لینگویج ہے، کوئی بھی لینگویج ہے، اس میں آپ کیوں نہیں لکھتے. اب ہم جب
ان بچوں کے لیے کہ جو ایگزامز دیتے ہیں, جو CSS کا ایگزام دیتے ہیں, جو مختلف کمپٹیٹیو ایگزامز میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ انگریزی ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے. ہم اخبار میں انگریزی میں پڑھ رہے ہیں, ہماری خبریں بھی انگلش میں آ رہی ہیں, ہم باہر بھی انگریزی میں بات کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک زبان اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ایک باہر کی زبان ہے, تو اس لیے ہم نے اس میں پڑھنا بھی نہیں ہے, یا ہم نے صرف اتنا پڑھنا ہے کہ ایگزام پاس کرنا ہے, اور یہ کہ اس میں ہم نے لٹریچر میں ایکسپریس نہیں کرنا. ایک ساؤتھ ایشیا کا ایک بڑا واسٹ لٹریچر اس وقت فیلڈ میں ہے, دنیا میں ہے. اس میں انڈیا کے بہت اچھے رائٹرز ہیں, اس میں پاکستان کے چند بہت اچھے رائٹرز ہیں جن کو ایوارڈز بھی دیے جا چکے ہیں. تو میرا ایک یوتھ کے ساتھ انگیج کرنے کا اسپیشلی یہ ایک بات تھی کہ وہ اس چیز کو سمجھیں, وہ اس پہ اکٹھے آئیں, اور ہم اس لینگویج میں ہم بات کریں, وہ ووکیبلری ہم یوز کریں. میری ایک اس پہ میں نے لکھا بھی ہے کہ چینج یور ووکیبلری. اس وقت جو آپ کی ووکیبلری ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو ایک ایسی ووکیبلری چاہیے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو اپنی آپ بات بھی کر سکیں. اور لٹریچر میرے لیے صرف اسٹیٹکس نہیں ہے. میرے لیے لٹریچر صرف یہ ایک بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک واہ واہ کر لی, ایک مشاعرہ ہو گیا, اس سے وہ چلے گئے, وہاں کوئی ہنسی مذاق ہو گیا, کوئی عشق معاشقی کی بات چیت ہو گئی, وہاں پہ وہ اینڈ ہو گیا. یہ لٹریچر نہیں ہے. آج کا لٹریچر مختلف ہے. آج آپ کے مسائل صرف عشق و محبت کے نہیں ہیں, آپ کوچہ جانا کے مسائل آج نہیں ہیں. آج آپ کے مسائل بہت مختلف ہیں. آپ بالکل ایک ڈفرینٹ ایرا میں آپ جا رہے ہیں. آپ ایک انٹرنیشنل سچویشن کے ساتھ آپ نبرد آزما ہے. آپ کی انٹرنل ایک بڑی پروسیس ہو رہی ہے, ایک ڈس انٹیگریشن کا ایک فنامنا ہو رہا ہے, چیزیں بالکل آل ٹوگیدر ری شیپ ہو رہی ہیں. اب ایسے دور میں لٹریچر کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اس طرح سے جو ہم لٹریچر لکھتے ہیں, کوئی کہے گا کہ جی یہ کتاب تو انگریزی میں لکھی ہوئی ہے اور اس میں تو کچھ بہت مشکل آپ نے لینگویج بھی یوز کی ہے, اور اس میں آپ کچھ آتھرز کی ذکر کر رہے ہیں, تو آپ تاریخ شاعری میں کیسے لکھ رہے ہیں, تاریخ ہسٹری آپ کیسے لکھ رہے ہیں؟ آپ کسی پرانا ایک یہاں پہ ایچ ٹی لیمبرک نے اگر ایک ریسرچ کی ہے تو اس ریسرچ کو آپ شاعری میں کیسے لے کے آ گئے؟ آپ نے 10-12 لائنوں میں اس کے بارے میں کیسے لکھا؟ بیسیکلی شاعری ٹریگر کرتا ہے آپ کے ایک تھاٹ کو, ایک پروسیس کو. اس تھاٹ پروسیس سے آگے پھر ایک سوچ آتی ہے, اسی سوچ کے مطابق پھر آپ آگے جاتے ہیں. مٹھو دریا میں میری ایک پوئم ہے جو میری, ویسے ساری پوئمز مجھے بہت پسند ہے وہاں پہ, کیونکہ اب وہ ایک کافی دین اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم کہ میں وہ سارا ایکسپلین کر سکوں کہ علی آکاش کے ساتھ کام کرنا, جو لوگ ان کو جانتے ہیں, وہ اتنا آسان نہیں ہے. ان کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا اور ان کا آپ سے ایگری کرنا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح نہیں ہے. لینگویج, خاص کر سندھی لینگویج کے بارے میں, اس کی ساری جو لینگویج اور اسٹیٹکس اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک پوئم ہے وہاں پہ میں نے لکھی ہے, اس کا نام ہے دا تھنکنگ مین. وی ایز اے تھنکنگ مین, ایز اے تھنکنگ ویمن, اس میں دونوں ہم جینڈر ہیں, ہم پہ ایک زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے. اگر میری ایک کتاب جو میں نے لکھی ہے, یا کوئی انگریزی کی ایک کتاب ہے, یا کسی پوئٹری کی کتاب ہے, اس کو سارے لوگ نہیں جانتے. اس کتاب کو سمپلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کتاب تو یار انگریزی میں ہے, یار وہ تو سمجھ نہیں آ رہی, تو گاؤں کے تو لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے. اصل گاؤں کے لوگ ڈیسیجن میکرز نہیں ہیں, وہ ڈیسیجن انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ ایک ووٹ دے رہے ہیں, لیکن آپ کی وہ جو وین گارڈ ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے چینج لانی ہے سوسائٹی میں. وہ یہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہاں کسی پوزیشن میں ہیں, یا وہ لوگ ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پڑھ رہے ہیں. تو وہاں تک اگر آپ کی بات پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہم نے کہاں ریلیٹ کرنا ہے, کس ایریا پہ ہم نے بات کرنی ہے, تو میرے خیال میں وہ ایک لٹریچر کا پرپس ہو جاتا ہے. ون ادر اسپیکٹ اس کہ کوئی بھی کتاب, ہمارے یہاں پہ یہ اکابرین ہے, یہ بکس لٹریچر پڑھتے ہیں, کوئی بھی کتاب فائنل کتاب نہیں ہے. میری ایک کتاب ایک کاوش ہے جو 1 سال میں نے ایک محنت کی ہے, یا میں نے لکھا ہے, یا میرے ایک امپریشن ہے, اور میرے کچھ خیالات ہیں جو میرے ذہن میں آئے ہیں, اینڈ آئی ہیو پٹ دیٹ. آگے کوئی اسے بہتر لکھ لے. میری یہ خواہش ہوگی کہ اس کو ایک فٹ سٹیپ بنا کے آگے کوئی اسے بہتر لکھ لے,
یہ کوئی ایک فائنل ورڈ نہیں ہے کہ جی میں نے لکھ لیا اب کوئی اور یہ کتاب نہیں لکھے گا. میں ہمیشہ اپنے جونیئرس کو، میرے جو بھی جن کو میں شاگرد کہتا ہوں، آج کل ویسے لوگ شاگردی نہیں پسند کرتے کہ ان کو کہا جائے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہرحال اسٹل آئی سے کہ دیر از آلویز این انسپریشن. لاسٹلی میں بات کروں گا سندھ میں. میں پچھلے 12 سال سے لکھ رہا ہوں، پوئٹری لکھ رہا ہوں، انگریزی میں لکھ رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے. سندھ میں آنے کے بعد مجھے خود سے نہیں تھا پتہ. میں نے کسی کو کہا کہ میں نے کتاب لکھی ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، انہی دنوں میری ایک بک آ گئی. اور پیرے نے جس کا ذکر کیا تھا لاسٹنگس، کتاب دیکھی، انہوں نے کہا کہ جی آگے تو لٹریچر فیسٹیول آ رہا ہے تو آپ کتاب کو وہاں لے جائیں. وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ کتابیں ہماری ڈسکشن ہوئی، وہیں سے پھر اس کی ٹرانسلیشن اور آنورڈس چیزیں ہوتی رہی. پھر وہ ایک لٹریری سرکلز اور اس طرح سے بات چیت ہوتی رہی. پھر ایک اور چیز میں بڑا اپریشیٹ کروں گا اسپیشلی، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ چلتی رہیں یہ چیزیں، اسی طرح سے یہ شہر ایسے ہی رہے، ایسی تھاٹ پروسیس چلتا رہے. حیدرآباد میں خاص کر اور یہاں کراچی تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی ایک بہت ایک انٹلیکچوئل سرکلز ہیں. تو کچھ مجھے کہیں نہ کہیں پہ بلا کے پوچھا جاتا تھا، یار یہ آپ نے کتاب لکھی ہے، یار کچھ تو بتائیے گا، یار آپ نے کتاب میں کیا لکھا. تو اگر میں کتاب میں ایک دو چیزیں ایکسپلین کر لیتا تھا، وہ کہتے تھے ہاں یار یہ تو آپ نے بالکل نئی بات لکھی ہے، یہ تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا کہ یار یہ آپ نے کوئی نوکوٹ فورٹ پہ لکھا ہوا ہے. یار نوکوٹ فورٹ تو ایک فورٹ ہے یار، وہاں سے تو لوگ گزرتے ہیں، آپ نے تو اس کو ایک اور اینگل سے لکھا. یا اگر آپ نے شیخ بھرکیو پہ لکھا کہ یار شیخ بھرکیو پہ آپ نے وزٹ کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار تو شیخ بھرکیو تو بہت ہی دار بھی نو کہ وہ کیا ان کی ہے ایک شخصیت گزری ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو وہاں کا جو آرکیٹیکچر ہے اس پہ رینوویٹ ہونے کی ایک ضرورت ہے. میں ویسے چند ایک مثالیں ہیں. یا کچھ اور جو میں نے اپنی طرف سے ریسرچ کیا، جس میں ایک ریسرچ یہ بھی تھی کہ ٹھٹا کی شاہ جہان ماسک پہ جب میں گیا تو اس کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کی تو اس ماسک کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا کہ شاہ جہان نے یہ ماسک ایز اے ٹوکن آف گریٹیٹیوڈ بنائی ہے. یہ اس نے اس لیے نہیں بنائی کہ وہ یہاں پہ اپنی بادشاہت لوگوں کو دکھا رہا تھا. وہ جب کسی ایک ٹائم میں سندھ میں آیا تھا، جب اس کی لڑائی ہوئی تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہاں اس کو پناہ دی گئی تھی، تو جب وہ یہاں سے گیا تو اس نے کہا کہ میں وہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ میں یہاں پہ دے سکوں سندھ کے لوگوں کے لیے. تو یہ سندھ کا ایک تاریخی کیریکٹر رہا ہے کہ یہاں جو بھی لوگ آئے ہیں ان کو پناہ دی گئی ہے، ان کو اپنایا گیا ہے. اس میں بھی شامل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. یہ نہیں کہ جی میں وہاں سے بینش ہو کے آیا تھا، لیکن مجھے یہاں پہ ایک گھر کا احساس یہاں زیادہ ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہوں. ود آل دیز ورڈس اگین آئی تھینک یو. آئی ایم ریئلی ویری گریٹفل، آئی ایم ریئلی ویری آنرڈ. اتنا آگسٹ ایک آڈینس، یہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ میری کتاب کی اناگوریشن ہو رہی ہے. اینڈ میں سندھ ایجوکیشنل ویلفیئر ایسوسیشن اور آرٹس کونسل آف تھر کا آئی ایم اگین تھینکفل ٹو دیم، جنہوں نے کتنی ایفرٹ کی اور میرے ساتھ ہم نے اس میں اکٹھے ہم رہے اور وی ہیو بین ایبل کہ ہم ایک بک لانچ بھی کریں. اور بک لانچ کے ساتھ ساتھ ہم ایک یہاں پہ گیٹ ٹوگیدر ہو جائے. جسٹ اینڈنگ، بک لانچ جنرلی مینس کہ آپ ایک بک کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بچوں میں بھی ہر جگہ پہ بھی. یہی ایکچولی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ وی سکسیڈ ان دیٹ. تھینک یو. Thank you so much, sir. تھا پلکن تے تارا انیا رقص کن، تھا پلکن تے تارا انیا رقص کن، متا چائیں تو محفل سجائی نہ، متا چائیں محفل سجائی نہ. ڈساں تھو کا تصویر ہر لڑک میں، ڈساں تھو کا تصویر ہر لڑک میں، اکھن جی عبادت اجائی نہ، اکھن جی عبادت اجائی نہ. پرے کھاں ڈسی چنڈ چمدو رہیو، پرے کھاں ڈسی چنڈ چمدو رہیو، بچھوڑے جی مانا جدائی نہ،
विछोड़े जी माना जुदाई ना। तमाम खूबसूरत सर सादिक अल्लाह साहब ने बात की है, और ये भी बड़ी अच्छी बात की है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। सर बहुत ही अच्छी बात कही कि बहुत और भी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मोहब्बत का जिक्र किसी और दिन से, इस दिन जो है ना वो हम बुक की इनॉग्रेशन का दिन है, बुक पे बात करते हैं, बुक की बातें करते हैं। बहरहाल हमारे पास, हमारे साथ, हमारे दरमियान जो मौजूद हैं तुफैल साहब, जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं सिवा के, मैं उनको गुजारिश करती हूँ वो स्टेज पे आए और आके अपना ओपिनियन शेयर करें आपसे। अस्सलाम वालेकुम। Worthy chief guests, honorable audience, I am delighted to be here tonight and have the opportunity for welcome speech and book launching ceremony written by Dr. Sadullah Sahab, Grand Complication. On behalf of Sindh Education and Welfare Association, I welcome to all guests here. I think there are two recent phenomena added to growing opportunity of poetry. First, spoken words for performing poetry. The second phenomenon is the publication of the poetry and the autographies of the masses. The Grand Complication reveals the hope the poetry, rather than all literature, play an important role in the society for better understanding the world around us. We read to expand our imagination, to build new words, to put ourselves in the shoes of others who may be completely different from us. The poet used the words to express his feelings, thoughts, and write his experiences, aspirations, when simple everyday language is not quite enough to convey strong emotions. Ladies and gentlemen, मैं तो कहूँगा शायर एहसास भी होता है और आशिक भी होता है of beauty, and beauty inspires him to express his verses in the words. As Allama Iqbal said, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम न हो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। तो शायर आशिक होता है हर हसीन चीज़ का, कुदरत के नज़ारों का और कुदरत के बना हुए हर चीज़ का। डॉक्टर सादुल्लाह साहब inspired from the beauty of river Indus and expressed the Indus in his poetry. Mithu Darya is a legend book of the poetry. Dr. Sahab visited river Indus and many places of Sindh, and beauty of Sindh inspired him and compelled him to express his ideas in his words of poetry. At last I recite the few lines of Shah Latif Bhitai. विसरे सारो लोग शाल न विसरी तूं, तोखे केॾो मूं सांढियो असां में. So Dr. Sadullah Sahab will always remember in our thoughts, be remembered in our thoughts, in our soul and the history. Thanks. थैंक यू सो मच सर। सर शेख खलील रहमान को देर हो रही है तो मैं उनको गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पे आएँ। ही इज़ सीनियर वाइस चेयरमैन ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। आई वेलकम यू हेयर सर। मेरे मौजूद मेहमान सारे जितने भी आए हुए, आप लोग आए दूर से और जितने स्टेज पे बैठे हैं सब काबिल एहतराम हैं। एक्टिंग चेयरमैन हूँ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और सर के साथ हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे मरासिम हैं। और बात ये है कि इस वक्त देखें आप, ये बहुत बड़ा पैगाम है इनकी किताब लिखना और सब कुछ करना,
हालांकि दूसरा इवेंट है, लेकिन मेरे लिए यहाँ दोरस बोल के जाना मेरे नहीं गलत था कि मैं ऐसे जाऊँ। सर बात सुने, देखिए ये मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, देखिए इन्होंने हैदराबाद में रह कर के हैदराबाद के कल्चर को प्रमोट करी, सिंध में रह के सिंध के कल्चर को प्रमोट करी। अगर आज ये सोच हम लोगों में आ जाए ना तो नक्शा बदल जाए, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम जहाँ जाएँ वहाँ के कल्चर को प्रमोट करें। सिंध का कल्चर इतना बड़ा है कि सर ने तो 12 किताबें लिखी हैं, अगर ये 400 किताबें भी, और देखें आप खुद कह रहे हैं मेरा जूनियर मेरे से अच्छा लिख सकता है तो मैं उसको प्रमोट करूँगा, इससे बड़ी को क्या फ़राख दिली होगी। तो सिंध का कल्चर इतना वसी है, इतना तारीख़ी है, इतनी डेप्थ है उसके अंदर कि हम उसको 50 घंटे में भी बयान नहीं कर सकते, 50 बुकों में भी नहीं कर सकते। और हम अपने कल्चर को उठाएंगे, टूरिज़्म को डेवलप करेंगे। सिंध इतना बड़ा टूरिज़्म का एरिया है कि इतनी उससे अर्निंग होगी सब कुछ, और हम इसको प्रमोट करने का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीज़न, एज अ ह्यूमन, एज अ मुस्लिम। तो कंज्यूमर एसोसिएशन का सर मैं आपके साथ इंशाल्लाह, हमारा काम ही यही है कि हमने प्रमोट करना है, हमने कल्चर को फैलाना है, हमने मिल के काम करना है। सारे जो हमारे साथ बैठे हैं भाई माशाल्लाह, हमने मिल के काम को करना है, हमने सिंध के कल्चर को भी फैलाना है। और मैं सर का तहे दिल के साथ इतना मशहूर हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखते हुए आज के दौर में इस तरह नहीं मिलती, वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रख के आप देखें हैदराबाद रह करके माशाल्लाह सिंध को इन्होंने उठाया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इनको जितनी तारीफ की जाए कम है, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। इन जैसे अफसरान हमारे साथ हो, कितनी हायर पोस्ट में है माशाल्लाह। इस पर टाइम निकाल करके किताब लिखना कोई आसान टास्क नहीं है। उस टास्क को बनाना, उसको सही करना, रिटर्न करना, और फिर उसमें इतना सारा लेसन्स हो कि आपके साथ प्रमोट भी कर रहे हैं, आपको पोइट्री भी दे रहे हैं, आपके साथ एजुकेशन भी दे रहे हैं, आपके साथ जो एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। भारत बहुत बड़ी बात है सर। मेरी विषय आपके साथ है और हम चाहते हैं कि आप हमारे मुल्क की खिदमत करते रहें। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अपनी रहमत से, और इसी तरह मुल्क का सब कुछ आप सरमाया है सर, और हमारे लिए फ़ख्र का इज़हार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जिनू जोश जज्बा जवाला कंदासी, जिनू जोश जज्बा जवाला कंदासी, बुटियूं मास बारे मशाला कंदासी। रगो पक दे तूं पिरी पंहिंजे अचण जी, पोइ असां ते छॾे ॾे, पोइ असां ते छॾे ॾे त छा कंदासीं, पोइ असां ते छॾे ॾे त छा कंदासीं। इन में शायदि ॾाढो सस्पेंस रखियो आहे त छा कंदो, ख़बर ई न पई पवे। बाय द वे फोटो सेशन हली रहियो आहे, भले फोटो सेशन थी वठे त पोइ जेको अवेटेड मूवमेंट आहे उनजी तरफ़ असां हलंदासीं। इनोग्रेशन ऑफ ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन रिटन बाय सर सादिकुल्ला खान वज़ीर साहब। थैंक यू सो मच। फोटो सेशन थी वठे। आपकी इजाज़त से जी, जो भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम लेकर उनको बुलाना चाहूँगी कि वो आगे आकर इनोग्रेशन करवाएं बुक की। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, तहां के असां गुज़ारिश कंदासीं त तहां अॻियां अचिजो बुक जी इनोग्रेशन लाइ। सैयद शबीर अहमद शाह सोशल एक्टिविस्ट आहिनि, उन्हनि खे असां गुज़ारिश कंदासीं त उहे स्टेज ते अॻियां अचनि। तुफेल साहब खे गुज़ारिश कंदासीं त उहे स्टेज ते अॻियां अचनि। हैदर अब्बास भुट्टो साहब जेके सोशल एक्टिविस्ट आहिनि, उन्हनि खे बि गुज़ारिश कंदासीं त उहे बि स्टेज ते अचनि अॻियां। आगा शेर अफज़ल खान साहब, उन्हनि खे बि गुज़ारिश कंदासीं त उहे भी स्टेज ते अचनि। ऐं उन खां अलावा चेयरमैन साहब महबूब शाह उहे स्टेज ते बीठल आहिनि। सामने देखिएगा। साड़ियुनि जी कमी आहे तमामु हिते। हैदराबाद मां अची करे थकी पिया आहियो छा? धड़ो
मुंहिंजे ख़्याल सां आराम लाइ तव्हांखे टाइम मिलियो आहे। जी इसाक सुमरो साहब खां गुज़ारिश कंदसि त उहे स्टेज ते अचनि ऐं उन्हनि खे किताब ते कुझु चवणो आहे। तव्हांजी ज़ोरदार ताड़ियुनि में इसाक सुमरो साहब। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टेज पे बैठे हुए हमारे दोस्त सादुल्ला खान साहब और डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब और दूसरे मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब और ऐसे एक मुसन्निफ पे ये तकरीब मुनक़द कर रहे हैं जो यकीनन रियली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आई हैव नेवर लिसन और सेड दैट एक बंदे ने शायरी पे कोई 12 किताबें और वो भी अंग्रेज़ी में लिखी है और पाकिस्तानी बंदा है, एक पख्तून बंदा है। मेरे ख्याल में कि ये इतना ये पहला ही सादुल्ला साहब है जिसने इतनी चीज़ें और शायरी पे लिखी हैं। वैसे जो शायरी है वो एक्चुअली एज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। शायरी दुनिया में जो भी लिटरेचर आया वो पहले शायरी में आया। अंग्रेज़ी लिटरेचर में कंटेम्पररी टेल्स जो थी वो शायरी में आई थी। उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें, इवन आज की जो साइंस है, साइंस के सब्जेक्ट हैं, जर्नलिज्म है, आपकी और सारी चीज़ें वो पैदावार हैं पोइट्री की। पोइट्री का पहला बुक जो आया था वो पोइट्री का आया तो पोइट्री करना खुद एक बहुत बड़ा जो है वो एक लिखने वाले के लिए मैं कहूँगा कि बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो सादुल्ला साहब ने ये जो किताब लिखी है और एक ऐसा बंदा जो यहाँ से मकसद है कि एक ऐसा, जैसे हमारे दोस्त महबूब शाह साहब ने फरमाया कि वो वज़ीरिस्तान और वाना के हैं। वो वज़ीरिस्तान और वाना का नाम जब हम सुनते हैं तो बड़े वो हो जाते हैं कि पता नहीं कैसा इलाका होगा, क्या होगा। तो वहाँ से एक बंदा निकलता है, CSS करता है और उसके बाद जो है वो पोइट्री उसका पसंदीदा सब्जेक्ट है। ये मेरे लिए भी बड़ी अच्छी समझो कि खुशखबरी है और मेरे लिए अच्छी नॉलेज है कि एक शायरी के हवाले से। वैसे शायरी में भी एक फ्री वर्स में सादुल्ला साहब ने, जिसे हम कहते हैं आज़ाद नज़म, सिंधी और उर्दू में हम कहेंगे ये आज़ाद नज़म में शायरी की गई है, फ्री वर्स में शायरी की गई है। और ये शायरी जो है वो 409 के करीब जो है वो उन्वानात हैं, उस पर शायरी है जो तकरीबन 1 साल के अरसे में हुई है, 2019 से 20 तक के। लेकिन एक 1 ईयर हैज़ गिवन टू दिस पोइट्री। तो मैं समझता हूँ कि समझो कि तकरीबन हर रोज़ एक शायर जो है सादुल्ला साहब ने लिखा है। ये भी बड़ी मुझे लगती है कि एक कमाल की बात है कि एक बंदा एक शायर डेली लिखता है। और उसके सिवा सबसे जो है कि शायरी करना, और शायरी में ये यकीनन एक हार्ड किस्म की रीडिंग इसके पीछे है, क्योंकि ये मुतालिया है सादुल्ला साहब का, जिसने इसको इतना इम्प्रेस किया है, चीज़ों ने उनको शायरी के सिन्फ में लेकर आए हैं और उसमें उसकी इमोशंस हैं। और बड़ी बात जो मुझे भी नज़र आई है कि ये बायोग्राफिकल पोइट्री है। सादुल्ला साहब जहाँ भी गए हैं, जो चीज़ें देखी हैं उसका मुशाहिदा किया है और फिर उसको उसने शायरी में लिखा है। ये भी एक बड़ी, सिंधी में हम कहते हैं दात है या वही दात या तमाम घट माण्हुनि में हूंदी जो उनखे शायरी में एक्सप्रेस करनि। नसर में तो करे सघिजे थो, किसी मजमून में, किसी आर्टिकल में, किसी ड्रामे में तो किया जा सकता है, लेकिन पोइट्री में करना आई थिंक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और इसके लिए बड़ी वो कहते हैं ना, वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग। मकसद है कि शायर हर आदमी नहीं बन सकता, मेरा ख्याल है। शायरी के लिए ज़ाहिर है एक इमोशंस चाहिए, एक इतनी वो ओवरफ्लो हो जाएं, पावरफुल फीलिंग जब ओवरफ्लो हो जाती हैं तो फिर वो शायरी की वो जो है वो तो शायर हज़रात समझ सकते हैं। हमने कभी शायरी
नहीं किए, लेकिन सादला साहब की चीज़ें मैंने पढ़ी है। मिठो दरिया मैंने अभी नहीं पढ़ी है और इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा। तो और चीज़ जो है कि सिंध पे एच.टी. लैम्बरेट और एच.टी. सोरली ने शाह लतीफ़ का पहला जो है वो कलाम किया, और उसके बाद जो ये बंस रोड हम देखते हैं, इसके जो बंस साहब थे वो सिंध में आए, तो उन्होंने भी सिंध पे बहुत बड़ा बुक लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध पे जो सिंध से बाहर के लोगों ने जो काम किया है वो तो नसर में किया है, लेकिन सादला साहब पहले आदमी है जिसने पोइट्री में किया। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ इन होल ऑफ द सिंध, एंड पर्टिकुलरली कि सिंध में इस किस्म की पोइट्री और ये उन्वानात जो हैं वो बड़े कैची हैं। मैं रियली इम्प्रेस सादला साहब कि आपने जो है वो जामशोरो के कैमिल, जामशोरे जा उठ, मुबलवतनी मोहन जे दड़े ते रात, मकसद में ये मिठो दरिया के उन्वान भी मैंने थे। और वो कोरोना की बीमारी, उस पर भी सादला साहब ने लिखा है कि कोरोना के ज़माने में मोहब्बत करना। शेख बिरक्यो एक छोटा सा शहर है, उस पर भी शायरी की है, और उसके बाद थर पे की है, रनी कोट पे की है, और बहुत से उन्वानाती जो है वो रियली ऐसा महसूस होता है कि ये कोई इंडिजीनियस बंदे ने यहाँ आके शायरी की है। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो सादला साहब ने सिंध के ऊपर की है, और यकीनन वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू दिस मैन कि उसने सिंध के लोगों पे, सिंध के चीज़ों पे, सिंध की धरती पे ये चीज़ें लिखी हैं। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं अपने दोस्तों महबूब अली शाह साहब से, हमने सावा सिंध एजुकेशन वेलफेयर 1982 में बनाई थी, और वो सकरन से हमने उसका शुरुआत की थी। आज वो जो खुशी है महबूब शाह, यू आर वेरी ग्रेट पीपल, ग्रेट मैन, आपने आज उसे कराची में लेके ये प्रोग्राम किया है। और सच पूछें कि इतनी बड़ी तादाद में ऐसे प्रोग्रामों में मैंने कभी नहीं देखी है, तो ये भी एक कामयाबी है, और ये सादतुल्लाह साहब की वजह से हुई है। सादतुल्लाह साहब वेरी थैंक यू वेरी मच कि आपने सिंध पे इतनी अच्छी पोइट्री की है, और इंशाल्लाह आप हमें नहीं भूलेंगे और हम भी आपको नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, यू स्पोक वेरी वेल। हाणे ऐं जेके सेवा जे बारे में तव्हां ॿुधी रहिया आहियो बार बार नालो पियो वठे ऑर्गेनाइज़ेशन जो, त उन्हनि जा ई जेके फाउंडर आहिनि महबूब अली शाह साहब, उन्हनि खे गुज़ारिश कंदुसि त उहे स्टेज ते अचनि ऐं ऑर्गेनाइज़ेशन जे बारे में बि कुझु ॻाल्हाईंदा। उन खां अलावा हिते इवेंट जे बारे में बि ॻाल्हाईंदा। उन खां अलावा अञा ताईं चवंदा आहिनि पिक्चर बि बाक़ी आहे, त पिक्चर न ख़तमु न आहे थी, ऐं हिन खां पोइ ॿी जॻह ते इवेंट आहे, उनजे बारे में बि अवां सभिनी खे आगाह कंदा। सबसे पहले तो मैं सब लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद देख के आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और ये कराची में हमारा पहला प्रोग्राम नहीं है। इसाक सुमरो साहब हम को पता है कि ये तकरीबन कोई 12वां या 13वां प्रोग्राम है जो हम कराची में कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म का पहला प्रोग्राम है। आज इस मौके पर मेरे दोस्त ने पहले ही भी आपका शुक्र अदा कर दिया, तो फिलबुट साहब ने, और मैं भी हैदराबाद से ख़ास तौर पर जो दोस्त आए हैं, जैसे अदीन आतिश फातिमा हैं, वो अपने पूरे जो है वो ग्रुप के साथ आई हैं, और उसके अलावा मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं जो प्रेसिडेंट हैं सोनी धरती यूथ के, जो भी अपनी टीम के साथ आए हैं, और मेरी जो अपनी सिंध एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी जो टीम है, वो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अशफाक हैं, और वाइस चेयरपर्सन जो हमारी लेडीज़ विंग हैं सबीन जावेद साहबा हैं, और हमारी नई मेंबर जो है वो आमना मेमन साहब हैं, YSR की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, और मोहतरमा ज़ेबा बलू साहबा भी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा डॉक्टर मारिया काजमी साहबा की ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ कोलैबोरेशन में है। मैंने मैडम को कहा था कि वो आ जाए, लेकिन शायद वो नहीं आई। तो ये जो आए हैं
मेहमान, मैं इनको वेलकम करता हूँ, इतना दूर से यहाँ हमारे पास आए हैं। हाँ, मैडम मौजूद है। अच्छा, मुझे नज़र नहीं आ रही मैडम को। मैंने कहा था आप अगर देर करेंगी तो फिर मैडम देर से आई 7 बजे के बाद, इसलिए मेरी नज़र नहीं पड़ी, वरना हमने तो ये कहा था मैडम का जो है वो हमने लोगो वगैरह लगा दिया है ऑर्गेनाइजेशन का। तो और मेरे इस टीम के जो सबसे वो क्रिटिसाइज जो करने वाले हमारे ऊपर जब्बार चांजो साहब, वो भी मौजूद है, पता नहीं है या नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, तो उसको भी मैं वेलकम करता हूँ। हे नज़र आ रहा है, लेकिन वो शायद कद की वजह से नज़र नहीं आ रहा मुझे। हाथ ऊपर करे तो थोड़ा पता चलेगा। वो अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं और इनको बड़ी शिकायत रहती थी मेरे से कि हम जब भी कराची में आते थे प्रोग्राम में के सिलसिले में, तो मैं इसको कहता था कि सदर से टावर जो है ना वो 2 या 3 किलोमीटर है। तो वो मेरे साथ सदर से टावर तक आते थे और हर 5 मिनट के बाद जो है ना वो यही पूछते थे कि सर टावर कब आएगा, टावर कब आएगा। तो ये बहुत सारी जो है हमारी यादाश्तें हैं तंजीम की। इस्हाक सुमर साहब हमारे पहले जो उनका अपना घर, उनका अपना डेरा जिसको हम ओता कहते हैं, उन्होंने हमें दिया हुआ था, वहाँ पे हमें मीटिंग्स करते थे। और इतने सारे लोग हमारे पास आए हैं। एक हमारे 2 मोहतरम शख्सात हैं, दोनों बहनें, एक पर महिला कुमारी और मान भाई, और उनके वालिद साहब जो हैं मिस्टर कृष्ण लाल फुफल, वो इंडिया से आए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको भी वेलकम करता हूँ और सबको कहता हूँ कि उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम ये किया कि उन्होंने अपनी दोनों सब बेटियों को पढ़ाया और उनकी दोनों बेटियां अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों ही माशाल्लाह जो है अभी 20 ग्रेड में प्रमोट भी हुई हैं। तो उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि वो हमारे तालियां उनके लिए भी हो जाएं। और अब जो मैं खास जो आप लोगों को सबको दावत देना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोगों ने एक और प्रोग्राम भी अरेंज किया है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहाँ पे हमारे साथ सेनेटर करीम ख्वाजा साहब भी हमारे साथ चलेंगे, डॉक्टर सादकला साहब भी चलेंगे, सारे दोस्त जितने भी हैं वो सब हमारे साथ इस प्रोग्राम के बाद चलेंगे। और जितने भी यहाँ पे मेरे मेहरबान हैं उन सबको मैं दावत देता हूँ कि इसके बाद जो है, वैसे तो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस करब से, जिस तकलीफ से, जिस परेशानी से हम लोग गुजर के आए हैं, और ये जो 2-3 महीने हमने झीले हैं, हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में हमारे लोग बेघर हुए हैं, बहुत सारों के घर उजड़ गए हैं, कई बच्चे और नौजवान और जो है वो बुज़ुर्ग जो हैं वो इसमें वफात भी कर गए हैं। ये जो बहुत बड़ी आफत थी जिससे हम गुजर के आए हैं और गुजर रहे हैं, अभी तक गुजर रहे हैं। तो मैं तो ये भी दोस्तों को अर्ज़ करूँगा, और इधर मेरे पास जो है ख़ास तौर पर ये जो इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो है मैंने बोला कि नाजिश फातिमा साहबा हैं, सबीन जावेद साहबा हैं, और उसके अलावा जो आमना मेमन साहबा हैं, इन लोगों ने और बहुत सारे और लोगों ने फ्लड के लिए बहुत काम किया है और अब उसके लिए और भी काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये जो हमारा सबसे बड़ा इशू जो है, ये हमारी खुशी है हमारे, इसीलिए हमने खुशी मना रहे हैं कि एक मिठो दरिया और ऐसी बुक्स पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी मिनारिटीज़ हैं, वो हमारे भाई हैं जो हमारे साथ रहते हैं, उनकी भी साल में ईद आती है, वो भी बहुत बड़े परेशानी से गुजर के आए हैं, लेकिन फिर भी वो खुशियाँ मना रहे हैं। तो मेरी अपील है आपको, जैसे मेरे ऑर्गेनाइज़र और मेरे साथी और दोस्त और मेरे सिंध एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मुसलसल मेरे साथ रहे किशोर कुमार, जिसका अपना घर भी जो है ना वो बारिश में डूब गया है, तो उनके लिए भी कुछ चंद घड़ियाँ हम चाहते हैं कि खुशी की जो ये दिवाली का इनका जो प्रोग्राम होता है, तो आप सब लोगों को मैं दावत देता हूँ कि वो भी मेहरबानी करके उसमें ज़रूर शरीक हों, और ये जैसे तकरीब ख़त्म हो तो फिर आर्ट्स काउंसिल चलें और उसमें उनके साथ खुशियों में शरीक हों। मैं इमरान पंजवानी साहब, बरकत साहब
और ये थ्योरी ऑफ पाकिस्तान से शायद तल्क है। आप लोगों को भी वेलकम करते हैं। काफ़ी रह गए हैं दोस्तों के नाम, जमील आशफी साहब का भी हमसे नाम रह गया, बहुत सारों का नाम रह गया होगा, तो मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन सबको मैं वेलकम करता हूँ। और किशोर साहब के लिए जो है ना, आप लोगों को बहुत सारी तालियां। ये हमारे दोस्त हैं जिसने बहुत जदोजहद की है, स्ट्रगल की है, हमारे साथ जो है वो साथ रहे हैं। और हमारे साथ डायरेक्टर मिनार्टीज भी मौजूद हैं, वो सर भी हैं। वैसे उन्हें मिनार्टीज वालों ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, बहरहाल उनको भी वेलकम करते हैं। खैर है, अभी वो करेंगे। मेरा ख्याल है कि जब दिवाली का हमारे वाले प्रोग्राम में शायद वो हमें प्यार दें, मोहब्बत दें, जो हम चाहते हैं। तो आप सब लोगों को दावत दे रहा हूँ, तो उसमें भी शरीक हो, मेहरबानी। और उसके अलावा मैं एक और दोस्त का नाम लेना चाहता हूँ, रोशन का। इस रोशन ने भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत की है। और दिवाली के हवाले से नरेश साहब हैं, वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो आर्ट्स काउंसिल में मौजूद है, उसकी भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मारिया काज़मी साहबा का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ़ ले आई, उन्होंने हमारे साथ कोलेब्रेशन किया, हमारे साथ जो है उन्होंने सहकार किया। टाइम बहुत हो गया है, और भी मुकर्ररीन स्पीचेस करेंगे, सब कला से सब जेके दोस्तों सब ॻाल्हाईंदा, ऐं इंशाअल्लाह ताला पोइ वाइंड अप थियण खां पोइ सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त पोइ असां उते दिवाली जे शो में असां शरीक थियूं। ख़ूबसूरत लिखियो आहे, अणथियण अणथियणी थी वई थियणी, मुंहिंजे अबनि ॾाॾनि जी चवणी। पंहिंजा नेठ बि आहिनि पंहिंजा, पंहिंजा नेठ बि आहिनि पंहिंजा, मारे उसमें कोन छॾींदा, मारे उसमें कोन छॾींदा, सच हुई पर थी वई कूड़ी। इन जो मक़सदु तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। इन जो मक़सदु इहो आहे त जेके पंहिंजा हूंदा आहिनि उहे मारे करे कोन छॾींदा आहिनि या वरी अची वेंदा आहिनि, पर सिंध सां जेको बि थियो आहे उहो पंहिंजनि कयो आहे, जेतिरो बि थियो आहे पंहिंजनि कयो आहे, पंहिंजनि माण्हुनि कयो आहे। बहरहाल इहो वास्ट टॉपिक आहे, इन ते असां बाद में ॻाल्हाईंदासीं, कॾहिं मौक़ो मिलियो त इन ते ज़रूरु ॻाल्हाइबो। पर रिकग्नाइज़ कयो पिए सर काफ़ी माण्हुनि खे, त मूं वटि बि काफ़ी नाला आयल आहिनि, उन्हनि खे रिकग्नाइज़ कंदा हलूं। इन खां पोइ स्पीचिस जी तरफ़ वञूं था। ज़ुबैर अंसारी साहब प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, प्रेसिडेंट आहिनि यंग सोशल पाकिस्तान जा। ज़ोहेब नुनारी साहब, सांद साहब, मंसूर कुंबर साहब, ऐं कुझु नाला मूंखे पाण खे यादि आहिनि, उन्हनि जा नाला रिकग्नाइज़ कंदी हलां, उन्हनि जो नालो वठंदी हलां। सभिनी जा नाला तव्हां कोन वठी सघंदसि, जंहिंजो नालो न वठी सघां त माज़रत, छो जो कुझु जा नाला यादि हूंदा आहिनि, कुझु जा नाला यादि न आहिनि हूंदा। हिकिड़ी मुलाक़ात हूंदी आहे, कंहिंसां रेंडमली मुलाक़ात थी वेंदी आहे, त जंहिंजा नाला यादि आहिनि उन्हनि खे रिकग्नाइज़ कंदी हलां। त मैडम ज़रताज साहिबा प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे भलीकार चऊं था, खुश आमदीद कहते हैं उनको। मैडम सबीन जावेद साहिबा प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। उनखां अलावा मैडम नाज़िश फातिमा साहिबा प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, हैदराबाद जो वॾो नाव आहिनि। उनखां अलावा अमरता साहिबा प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, सोशल एक्टिविस्ट आहिनि, ऐं उनखां अलावा यंगस्टर्स जे लाइ तमामु बहितरीनु कमु करे रहियूं आहिनि। ऐं हिन साइड जी ॻाल्हि करियां त मीर साहब प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। मीर साहब ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहिनि। हिन दौर में माण्हू जेके आहिनि वणनि कटण पुठियां पिया आहिनि, पाण फॉरेस्ट लॻाइण पुठियां पिया आहिनि, त ॾाढो बहितरीनु कमु थी रहियो आहे। ऐं जंहिंजा नाला वठी न सघी आहियां, रिकग्नाइज़ न आहियां करे सघी, त उन लाइ माज़रत। मुंहिंजे ख़्याल सां दानियाल जिलानी साहब प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, हालांकि नज़र न पिया अचनि, पर मूं हिकिड़ो रेंडमली चवंदा आहिनि नज़र पई हुई उन्हनि ते, उहे बि प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। बहरहाल प्रोग्राम जो जेको आहे उहो पैटर्न अॻियां वधायूं था, ऐं जेके मूं वटि नाला आयल आहिनि स्पीचिस जा, उन्हनि जी तरफ़ वञूं था। स्पीचिस लाइ उन्हनि खे आऊं दावत ॾींदसि। अमान सादिक साहब जेके प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, संदन जेको तालुक़ु आहे उहो कस्टम पाकिस्तान सां आहे, ऐं उहे जेके आहिनि उहे स्टेज ते ईंदा ऐं पंहिंजूं जेके ओपिनियन आहिनि उहे अव्हां सां शेयर कंदा। अव्हांखे भली कार्ड चवां थी। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, ma'am. First of all, I would like to extend my profound gratitude and welcome to all distinguished guests. सादिकुल्लाह खान साहब का मैं स्टूडेंट हूँ, और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एट द मोमेंट सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर को, और ग्रैंड कंपाइलेशन पे तो बात करेंगे, पर सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो इवेंट्स है, बुक लॉन्चिंग है, it's not only boonful and advantageous for the men of letters और जो
ادب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے صرف ایسے ایونٹس امپورٹنٹ نہیں ہوتے، بلکہ جو یوتھ ہے اور وہ والی یوتھ جو کہ آج کل سوشل میڈیا اور ایسی پلیٹ فارمز پہ جو کہ انڈلج ہے، ان کے لیے ایک ریولوشنری اور ایک نئے فیز میں انٹری کے لیے ایسے جو ایونٹس ہیں دے آر ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے آرگنائزیشن کی طرف سے بھی کہ انہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے. اور جہاں تک لٹریچر اور ادب کی بات ہے تو انفارچونیٹلی لٹریچر از ٹیکنگ اے بیک سیٹ ان دا سب کانٹیننٹ، اور پرٹیکولرلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو لٹریچر از جو عشق بازی اور جو دوسری پوئٹری ہے وہ اوور ویلم کر رہی ہے ایٹ دا مومنٹ. اور اسی اسنا میں مین وائل اگر ایسی بکس گرینڈ کمپائلیشنز جو کہ تمام جو تاریخ ہے اور ثقافت کو سموئے ایک بیٹر پیس آف لٹریچر پرووائڈ کرتی ہے، سو دس از ریئلی گریٹ. اور یہاں پر ابھی بات ہوئی کہ انگلش میں پوئٹری جو کی ہے سر نے، تو لوگوں کی طرف سے وہ بھی آئے کہ اپنی زبان میں یا اردو میں یا جو ہماری علاقائی زبان ہے ان میں پوئٹری کیوں نہیں کی ہے. تو بر صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے نامور پوئٹ مجھے یاد آئے جس کو 1913 میں ادب کا نوبل انعام ملا تھا، اینڈ ہی واز دا فرسٹ نان یورپین نوبل laureate کہ جن کو اس انعام سے نوازا گیا تھا. ہی واز ربندر ناتھ ٹیگور، جنہوں نے بنگالی میں پوئٹری کی تھی، اور تب تک ان کی پوئٹری دنیا میں کوئی انقلاب نہیں لا پائی تب تک جب کہ جو آئرش ایک ڈسٹنگوش آئرش پوئٹ تھے ولیم بٹلر ییٹس، انہوں نے اس کی پوئٹری کو ٹرانسلیٹ کیا انگریزی زبان میں، اور اس ٹرانسلیشن کے بعد اس نے جو وار ٹروڈن یورپ تھا اس میں ایک تہلکہ مچایا، اینڈ دیٹ براٹ اباؤٹ ریئلی اے گریٹ ریولیوشن ان دی یورپین لینڈ. جس کے بعد نہ صرف ٹیگور صاحب کی جو پوئٹری تھی وہ مغربی ثقافت اور مغربی ادب کا حصہ بنی، جبکہ اس کو 1913 میں جیسے میں نے بتایا کہ اس کو نوبل پرائز ملا. اور جو ادب ہے اس نے نہ صرف جو سیاسی انقلاب ہے اس کو برپا کیا ہے، پر سر کی یہ بک اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ زیادہ تو ثقافتی جو سیاسی انقلاب تو نہیں ہے، لیکن یہ ثقافتی انقلاب ضرور ہے. اور یہ ثقافتی انقلاب اس وجہ سے ہے کہ ثقافت پر شاعری تب ہوتی ہے جی بس میں ایک دفعہ، اور جو ثقافتی انقلاب اس وجہ سے کہ جب آپ کی ثقافت ایک پیک پہ ہوتی ہے تو اسی پہ شاعری ہوتی ہے. اینڈ دس از ریئلی اے گریٹ کنٹریبیوشن ٹو دا لٹریچر آف دا سب کانٹیننٹ سر. اور ہم آگے بھی امید کریں گے کہ آپ کی بکس اسی طرح آتی رہے اور لٹریچر میں اسی طرح اپنا حصہ بناتے رہے. تھینک یو سو مچ. उहे अची करे पंहिंजो ओपिनियन शेयर कनि ऐं उन्हनि खे इहा ॻाल्हि ज़रूरु चवंदसि थी सो हम्बल हिननि सां मुलाक़ात प्रोग्राम्स में ई थींदी आहे. त सर खे प्रोग्राम में भली कार्ड चऊं था. सादिकुल्ला खान साहब जेके वेठल, जो भी स्टेज पे बैठे हुए, भुट्टो साहब, आगा साहब, शाह साहब, और ये हमारे सुई सदन के बड़े ऑफिसर साहब है जहन में भी निकलिया, इसाक सुमरो साहब, कटपर साहब, और लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम. ग्रैंड कॉम्प्लिकेशन जो बुक है ये मैंने सारी किताब पढ़ी है क्योंकि ये कृष्ण साहब और महबूब शाह साहब ने मुझे दी थी आज से कुछ दिन पहले. आई वेंट थ्रू द बुक. बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे अंदाज में हर टॉपिक पर प्लूरिस्टिक है, डाइवर्सिफाई है, टॉलरेंट है. ये तीन क्वालिटीज़ इसमें बड़ी अच्छी मैंने देखी. और इन्होंने फिलोसफर्स का भी जिक्र किया है और मुख्तलिफ इलाकों का भी जिक्र किया है, दुनिया के मुख्तलिफ लोगों का भी जिक्र किया है. हम्बलिटी में इन्होंने बयान किया है. शायरी जब इंसान ने आज से 2.5 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले सेपियंस जिसको हम कहते हैं इस धरती पर नमूदार हुए, और उसके बाद जो है उन्होंने मुख्तलिफ मराइल से तरक्की की और
40-50 हज़ार साल पहले इंसानों ने गारों में रहना सीखा और उन्होंने कोशिश की, पेंटिंग की। जब बात करना शुरू किया तो डांसेस के थ्रू एक्सप्रेशन की, उसके बाद पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेशन की, फिर वर्सेस के फॉर्म में एक्सप्रेशन की। तो जो रिटर्न हिस्ट्री है 10,000 साल या 12,000 साल, उसमें पोइटिक फॉर्म में जो चीज़ें जिन लोगों ने बयान की वो अभी तक याद है। उमर को हम याद करते हैं, कालिदास को याद करते हैं, मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ खितों में उनको हम याद करते हैं। चाइनीज़ लिटरेचर हो, इजिप्शियन लिटरेचर हो, या पर्शियन लिटरेचर हो, या बेजेंटाइन लिटरेचर हो, तो उसमें मुख्तलिफ शेर शायरी की सूरत, उसके बाद वर्स की सूरत में हमें नज़र आती है और हम अभी भी उसको याद करते हैं। तो हमारे पास सूबे सिंध में भी बहुत से अच्छे शायर गुजरे हैं। शाह लतीफ़ है और सचल सर मस्त है, सामी है और दीगर बहुत से अजीम शान शायर लतीफ़ साहब से पहले भी गुजरे हैं और उनको हम पोइटिक फॉर्म में याद करते हैं। दुनिया में पोइटिक फॉर्म जो अजीम लिटरेचर जो भी आए हैं वो पोइटिक फॉर्म में ही है और जिसको हम बयान करते हैं, याद करते हैं। तो ये खान साहब ने जो दूसरी बुक है वो मैंने अभी सरसरी देखी और उसमें भी अच्छे टॉपिक्स थे। इसाक सुमरो ने बड़े अच्छे अंदाज में इनको एक्सप्रेस किया है। और सर हमारे पास, मैं खुद प्रोफेशन वाइज मेडिकल डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट हूँ और मिसाल के तौर पर सिंध में लेम्बेक हैं या दीगर राइटर्स हैं हमारे यूरोपियन और जर्मन्स जिन्होंने हमारे लिटरेचर को सबसे पहले अच्छे अंदाज में एक्सप्रेस किया। आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि सिंध को आपने मुख्तलिफ अंदर एक, आप हमारे हैं, हम सब एक ही हैं, पाकिस्तानी हैं, पर मतलब है कि आप वज़ीरिस्तान के होकर सिंध को बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्रेस किया। मैं खुद साइकेट्रिस्ट हूँ। सर कवस जी जो आजकल जिसको हैदराबाद में बहुत बड़ा इदारा है, हमारी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है उसको, वो भी ही वॉज फ्रॉम बॉम्बे, ये पारसी फ्रॉम बॉम्बे, और उसने इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की कि अभी तक हम उसको याद कर रहे हैं। तो आपने भी जो इस सिंध को एक्सप्रेस किया है अंग्रेज़ी में एक नए अंदाज में, शायरी के एक नए अंदाज में, तो ये बहुत अरसे तक याद रखी जाएगी। इंसान गुजर जाता है, उसको 50 साल ज़िंदा रखते हैं, हम याद करते हैं, या 70 साल, मगर ये जो पोइट्री और जो दीगर चीज़ें जो लिखते हैं उनको बहुत सैकड़ों साल तक याद रखा जाता है। आपने बड़ी अच्छी मेहनत की है और आपको सिंधी में कहते हैं कि जस हो जाए, शाबाश हो जाए कि आपने बड़े अच्छे अंदाज में चीज़ों को एक्सप्रेस किया है। ये बुक जो है, मैं इसको ये कहूँगा क्योंकि वो मिठो दरिया तो टोटल उन्होंने सिंध पर बहुत अच्छा बोला है। ये बुक सर मैं इसको इंटरनेशनलिस्ट कहूँगा क्योंकि इसमें फ़िलसफ़ा कार्ल मार्क्स का भी जिक्र किया है, मुख्तलिफ उथल पुथल जो दुनिया में हो रही है उसका भी जिक्र किया है, पर पॉजिटिव वे में, और इसमें कंस्ट्रक्टिव वे है। आपने बड़ी अच्छी एक्सप्रेशन की है, खुदा आपको बढ़ाए, चीज़ों को और होनी चाहिए। मेरा जो नाना था जी अलाना साहब, ही वॉज उसको नोबेल ये पोएट लॉरेट का भी लक़ब मिला था। तो और मेरे पैटर्नल साइड पर भी शायर थे सिंधी में, तो शायरी हमारे ज़बान, शायर और नसर दोनों हमारी फैमिली में भी है। जनाब जो वाइस चांसलर गुलाम अली अलाना भी हमारे घर के ही आदमी थे, उनको पाला मेरे दादा ने, और वो हमारे घर के ही हैं, और खुदा उसको जन्नत नसीब करे। उनकी बहुत अच्छी खिदमत है सूबे सिंध के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। तो शायरी जो आपने की है, हम चाहेंगे कि खुदा आपको बड़ी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और इस पर और किताबें लिखें और पाकिस्तान पर भी लिखें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों पर भी लिखें, और खुसूसन
میں سر ایک چیز سوچتا رہا ہوں, میں خود لکھنے پڑھنے والا ہوں کہ سائیکٹرسٹ کی حیثیت سے, کہ جب میں ناردرن ایریاز میں آپ کے علاقے میں کے پی میں جاتا ہوں, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر برِ صغیر کی تاریخ لکھیں تو جو اشوکا دا گریٹ, چندر گپت موریہ جو اس کا دادا تھا, ایک عظیم الشان بادشاہ تھا, اور وہ اس نے بدھزم کو پروموٹ کیا, اور بدھزم سب سے پہلے ہمارے اس خطے میں آپ کے علاقے میں پروموٹ ہوئی. اب وہ جو خطہ اتنا ٹالرنٹ خطہ آج کل کیوں افغانستان اور یہ سارا خطہ ہمارا انٹالرنٹ اور کیوں ہو گیا, یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کچھ جینیٹکس ماہروں سے بھی اس چیز پر ڈسکس کیا کہ یہ کیا ریزن ہے کہ اتنا جینیٹکس میں بھی ٹویسٹ کیوں آیا کہ ایک ٹالرنٹ خطہ انٹالرنٹ بن گیا ہے, نسل تو وہی ہے. تو اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے انٹلیکچوئل ڈسکورس حوالے سے, اور اس کو نیگیٹیولی نہیں پازیٹیولی لینا چاہیے. اسی طرح ہم سندھ کے جو لوگ ہیں اس میں بڑی اچھی خوبیاں ہیں, پر بڑے ڈیفیکٹس بھی ہیں کہ ہم ریزسٹنس ہماری اگر تاریخ میں دیکھیں, مطلب معذرت سے میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا, میں نے ہسٹری پڑھی ہے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ریزسٹنس, پاکٹ ریزسٹنس ملی ہے, راجہ ڈائر کی ملی ہے, دو سمروں کی ملی ہے, ہوش محمد کمرانی کی ملی ہے, ذوالفقار علی بھٹو تو اس کی ملی ہے, بے نظیر کی ملی ہے. پاکٹ ریزسٹنس ضرور ملی ہے, پر اجتماعی طور پر ہم اتنے کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ ہمیں بھی اچھی چیزیں بھی ہیں, خراب چیزیں بھی ہیں جو کہ ڈسکس ہونی چاہیے. تو بہرحال शाह साहब जेके आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश कंदसि त उहे अचनि स्टेज ते ऐं पंहिंजे जेके ओपिनियन ते शेयर कनि. पाण सोशल एक्टिविस्ट आहिनि ऐं तमामु बहितरीनु कमु करे रहिया आहिनि. स्पेशली हींअर जेको ॿोॾि वारी सिचुएशन हुई इन सिंध, त उनमें तमामु घणो कमु कयो अथनि. तव्हांजी ज़ोरदार ताड़ियुनि में तव्हां पंहिंजी ताड़ियुनि सां भलीकार कयो शबीर शाह जो. अॼु जे प्रोग्राम जो रूह रवां मोहतरम डॉक्टर सादिक अल्लाह साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेहमान गिरामी और मेरे सामने बैठे हुए ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम. ईंदे चवनी आव, वींदे चवनी वे, छॾे सारो ॾे अंगण जे उन्हनि जे. इसका उर्दू तर्जमा ये है कि ईंदे चवनी आव, यानी जो आपको आते वक्त वेलकम करें और खुशामदीद कहें. ईंदे चवनी आव, वींदे चवनी वे, जाते वक्त आपको कहें कि आप बैठो, यानी उनका दिल नहीं भरा अभी. छदे सारो डे अंगण जे उन्हनि, यानी पूरी दुनिया छोड़ के उनके पास आना चाहिए. तो सबसे पहले सिंध एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, ख़ास तौर पे साईं चेयरमैन हैं उनके सैयद महबूब अली शाह लकियारी साहब. और मैं आप सब लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग उसी मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम में आए हो और पार्टिसिपेट किया है. यहाँ यकीनन आप इसीलिए आए हैं कि आप अदब से ताल्लुक़ रखते हैं या ज़ौक़ रखते हैं. कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि ऐसी बातें करें और के बात रुकने की ना हो, लेकिन टाइम की मजबूरी है. मैं मुख्तसर दो बातें करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के हम मशकूर हैं जिन्होंने सिंध में रहते हुए सिंध के हालात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, जिनके लिए जितने हम कहें, जितने अल्फाज हमारे पास नहीं हैं जो हम इनका शुक्रिया अदा कर सकें. हम ये करेंगे कि डॉक्टर साहब के एजाज़ में एक वेलकम पार्टी या कहते हैं कि सिंधी में आजेणो वो ॾेई असां हिकिड़ो कर्ज़ लाहिण जी कोशिशि कंदासीं. दिल तो बहुत करता है कि कुछ बोले, लेकिन अभी बात निकली थी हैदराबाद की, और मेरा ख्याल है हैदराबाद में ज़्यादा जो है ना सिर्फ हैदराबाद के लोगों की बैठी है. बात निकली थी चूड़ियों की, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मशहूर हैं, लेकिन एक शायद आप लोगों के इल्म में हो या न हो कि चूड़ियों पर नाम भी लिखे जाते हैं जो दुल्हनों को गिफ्ट में दिया जाते हैं. दूल्हे और दूल्हे का नाम लिख के शादियों में जो है ना उनको गिफ्ट किया जाता है. बहरहाल बात यह है कि
बहुत खुशी हुई है कि हमें आप लोगों से मुखातब होने का मौका भी मिला है, लेकिन दिल तो नहीं कर रहा कि यहाँ से हटें, लेकिन टाइम की मजबूरी है। मैं आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को भी ये कहूँगा कि मुख्तसर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। किताब चूँकि हमने पढ़ी नहीं है, किताब की आज रूनमाई है, हम कोशिश करेंगे कि नए सिरे से दाखिला लें इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो हम किताब को समझ सकेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी मिठू दरिया के बारे में तो हम ये कहते हैं कि मीठा दरिया, तो मेरे ख्याल है वो मिठास ही है जो डॉक्टर साहब के अंदर में गई है और जिसने अच्छे तरीके से सिंध को जो रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू। और किसी ने ये भी कहा था कि हमारे जो नौजवान हैं वो पढ़ने लिखने से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं, तो मैं ये समझ रही हूँ मुझे सबसे ज़्यादा नौजवान पता है कहाँ नज़र आ रहे हैं, ये पहली सीट पे। मैं समझती हूँ दिल तो बच्चा है दिल तो बच्चा है, हम तो हर वक्त बच्चे ही रहते हैं, और मेरे ख्याल से उस बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। जब तक वो बच्चा ज़िंदा नहीं होता हम ज़िंदगी को ख़त्म कर बैठते हैं, कहीं पे हमारी ज़िंदगी कहीं ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं ना, वो मेरी नज़र में सब नौजवान हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और मैं जो इस प्रोग्राम का लास्ट स्पीकर है मैं उनको बुलाना चाहूँगी, और उसके बाद जो है वो हम अवार्ड सेरेमनी की तरफ जाएंगे। मुख्तियार राजपूत साहब, आगा शेर अफजल साहब, ओके चलो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माण्हू सब न सुहिणा, पखी सब न हन, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे बू बहार जी। स्टेज पे बैठे हुए और इस हाल में मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ डॉक्टर सादिकुल्लाह साहब और सेवा के साईं महबूब शाह साहब का कि उन्होंने हमें यहाँ दावत देकर आने का मौका दिया। डॉक्टर साहब हैदराबाद में 3-3.5 साल रहे, माशाल्लाह हैदराबाद में छाए रहे। खूबसूरत मेहमान अञा ताईं मौजूद आहिनि ऐं लास्ट स्पीच है छो जो उहा ई ॻाल्हि हिकिड़ो ठहियलु हूंदो आहे न, पैटर्न ठहियलु हूंदो आहे, हिकिड़ो लिखियलु हूंदो आहे, उहा मूं वटि लिखियलु आहे, ऑन द स्पॉट मूं वटि नाला पिया अचनि। सो बहरहाल ऐं जेके आहिनि असां वटि आगा शेर अफज़ल साहब मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे भली कार चवां थी, तव्हां ताड़ियूं वॼाईंदा त उन्हनि खे वधीक ख़ुशी थींदी, ऑनर फील थींदो। पाण बि पोइट आहिनि, तालीमदान आहिनि ऐं राइटर बि आहिनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। आज की इस महफिल के हम सब के दिलों के महबूब, सेवा के और इस प्रोग्राम के मेज़बान सैयद महबूब अली शाह लखयारी साहब, और आज के इस सेरेमनी के नहायत ही खूबसूरत और खूबसीरत और ग्रांड कॉम्प्लिकेशन किताब के मुवज्जिद, ऑथर, लेखक जनाब डॉक्टर सादिकुल्लाह खान साहब, जनाब सिकीलदा सैयद साईं शबीर अहमद शाह साहब, साथ बैठे हुए चीफ ऑर्गेनाइजर साहब और मुअज़्ज़िज़ स्टेज के मेहमानान गिरामी, यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम अकाबरीन मुअज़्ज़िज़ीन, प्रोफेसर आगा शेरगुल खान सरकी साहब, और मैं नाम नहीं जानता जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, और हमारी बहनें, माएँ, ख़वातीन, मुअज़्ज़िज़ तरीन ख़वातीन और तमाम मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के उस शेर से अपनी गुफ्तगू का इसलिए आगाज़ करता हूँ कि आज की महफिल भी उसी निस्बत से है, और मैडम से माजरत खा होकर, मैडम प्रेस साहबा से, कि तमाम स्पीकर्स से ज़्यादा टाइम मैडम आपने लिया, तो थोड़ा सा टाइम अभी मैं भी लूँगा।
भटाई साहब ने कहा कि विजूं वसण आयूं चोॾस चौधार के उथी वयूं इस्तंबोल ॾे किन मणिया मग़रब पार के रमी वयूं रोम ते के काबुल के कंधार कनी जुंबे जैसलमेर तां ॾिना बेकानीर बुखार कनी भुज भिॼायो कनी ढट ते ढार कनी अची अमरकोट ते वसाया वलहार साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभावत करी। मेरे दोस्तों, उस आफाकी न सिर्फ शायर बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिमुल कुरान, हाफिजुल कुरान, तर्जमानुल कुरान, फसीहुल कुरान, बलीगुल कुरान, मानवीउल कुरान जनाब हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई वलद सैयद हबीब शाह बादशाह का मैं आज एक आप लोगों पर इंकशाफ करता हूँ कि उस ग्रेट इंसान ने जब अपनी बात का आगाज किया तो उसने वहदतुल वजूद का नजरिया पेश करते हुए कहा कि अव्वल अल्लाह अलीम आला आलम जो तणी। तो उसकी पजीराई की एक इंतहा अर्ज करना चाहता हूं कि अमेरिका जो पूरी दुनिया का सेठ बना हुआ है, हालांकि सेठ तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है, जो सबसे बड़ा टोपोग्राफिस्ट है, जो सबसे बड़ा जोग्राफिस्ट है, जो सुप्रीम जज है, जो सोवरेन है, जो मुक़्तदिर आला है, कि जिसका जो न सिर्फ लम यलिद वलम यूलद बल्कि वलम यकुल लहू कुफुवन अहद भी है, उसका कोई हमसर नहीं। तो न्यूयॉर्क में जब समिट मीटिंग के लिए एक बिल्डिंग बनी तो अमेरिका वालों ने कहा कि उस समिट मीटिंग के लिए जो मेन गेट बना है इस बिल्डिंग का, इस पे किसका इक्तबास कंधा किया जाए। तो बड़े बड़े नाम थे, इंग्लिश ऑथर थे, यूरोपियन ऑथर थे, ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स थे, फिर हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद की बड़ी बड़ी हस्तियां थी, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन शेर चूज हुआ शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का कि आज भी वो उधर मेन गेट पे लिखा हुआ है जहाँ पे सरबराहान पूरी दुनिया के सरबराहान की कॉन्फ्रेंस होती है, समिट मीटिंग होती है, तो उसके गेट पे लिखा हुआ है कि अल्लाह चन ऊ जन आए मन सरा होती। एक कि वो आए कि जिनके आने से मेरे रूह को खुशबूयात के भबके मिले, मेरा दिल खुश हो जाए, अश अश हो जाए। अल्लाह चन ऊ जन आए मन सरा होते पसामा पर के संतीय जतन जू गोली थिया गुल बूई जे मान्यो पान सी। एक वो आए कि मेज़बान कहता है कि जिनके आने से मेरे दिल को खुशी मिले, और फिर वो इस्तदवा करता है मेज़बान के फिर मैं भी उन्हीं के इलाका है जात को देख सकूं, उन्हीं के इलाकों में जू में जा सकूं। और न सिर्फ ये मेज़बान की ख्वाहिश कि मैं उनके इलाका है जात में जाऊं, बल्कि मैं उन मेहमानाने गिरामी पर इस तरह कुर्बान हो जाऊं, इस तरह फिदा हो जाऊं जिस तरह फूल पर उसकी खुशबू फिदा हुआ करती है। उसी भटाई ने जब पीड़ा की बात की, दर्द की बात की, तो कहा कि सूरायती सड करे सड सूरन के। डॉक्टर साहब, सूरायती सड करे सड सूरन के, सूरन फगस हड सेपुण सेके सूरसी। उसी भटाई ने जब मखलूक इंसानी में औरत ज़ात की वकालत की जो हमें इंतहा बतलाई, तो उसमें उसने खुद अपने आप को भी इस तरह पेश किया जैसे कि वो लतीफ़ शाह नहीं था, वो लतीफ़ा बीबी था,
7 सूरमियाँ उन्होंने जो हमें दी, उससे ये महसूस होता है। और दुनिया में रिश्तों का, ये दुनिया रिश्तों पर उस्तवार है। पहला रिश्ता अल्लाह और उसके उस हस्ती का जो वजह तख्लीक कायनात है, मेरे ईमान के मुताबिक। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्लाह और मखलूक में फिर वालिद और वलद, फिर बहनें, फिर दोस्त, फिर भाई। लेकिन औरत दुनिया का सबसे बड़ा इसलिए रिश्ता है कि तमाम रिश्ते इसी जगह से जन्म लिया करते हैं। तो हमें ये एहतराम मलूज़ खातर में रखना पड़ेगा। जहाँ तक बड़े बड़े शोरा की बात है, तो आज एक बहुत महबूब, खूबसूरत और खूबसूरत शायर कि जिनको मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन सैयद महबूब अली शाह लक्यारी साहब जैसे मोअज़्ज़िज़ और लाजवाब कोहना मश्क दोस्त से जब हमने सुना तो हमें भी लव हो गया है। एक ऐसी बात कि मैंने जब डॉक्टर सादिकुल्लाह खान साहब के दोनों किताबों को तायराना आंख से देखा, तो जो वो सोचने वाला आदमी, उसको मैंने जब देखा तो मैंने महसूस किया कि ये कमाल का एक ऐसा डॉक्टर है कि जो न सिर्फ डॉक्टर है बल्कि चीज़ों का, मामलात का, रवैयों का, हकीकतों का, सब चीज़ों का भी डॉक्टर है। उसने एक इनकलाबी बात बताई है कि सोचने वाला आदमी, यानी हम सबको इंडिकेट किया है कि हमें ये वतीरा अपनाना पड़ेगा, वगरना हम नील बटा नील हो जाएंगे। बिटाई साहब ने जब उनसे पूछा गया कि सही आपने अपने आप को क्या समझा, तो कहा कि मारे कुटे मुंह हिन वहटसी वस कया तात सेखारी तू मुझे सवारी सौ न कयो। ये है तो बेसिकली इंसान सोशल एनिमल तो है ना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि खूरो ख्वाबो शगम शहवत शगब अस्तो जहलो जुल्मत हैवां खबर नदारत जमकान आदमियत अगर ई दरिंदा खोए जतबियत हमीरत हम जहत जिंदा बाशी भरवान आदमियत। खाना, सोना, गुस्सा करना और ख्वाहिश इंसानी करना, ये चारों चीज़ें इंसान और हैवान में कदर मुश्तरक हैं। लेकिन जो इन पर गालिब है वो इंसान है, और जो मगलूब है वो इंसान के रूप में हैवान है। मैंने देखा है हज़ारों शैतानों को एहराम में मलबूस, और मैंने 100 बार बुत खाने में खुदा को देखा है। मुर्शिद की गली का एक फेरा 100 हज के बराबर होता है। तो भिटाई साहब ने खुद से पूछा कि मारे कुटे मुंह ने वह टसी वस कया, मैंने अपनी इस जानवर नुमा वजूद को फेंटियाँ लगा लगा के कोशिश की, लेकिन ये सवारी मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही। तो फिर उसी भिटाई को उसके अंदर के भिटाई ने कहा कि फिर उसमें कुछ चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी, और वो चंद चीज़ें, वो चंद वसाइफ, वो चंद खसाइल का मालिक होना, उसके लिए उन्होंने हमें इंडिकेट किया। कहा कि अधो खारो अन्नसी की न थोरो गाउडीस, ये मुर्शिद भिटाई कह रहा है। अधो खारो अन्नसी की न थोरो गाउडीस आधी इस्तगफार जो खरड़ो खास हनीस। सॉरी है ना ये, आधी इस्तगफार जो खरड़ो खास हनीस तोप तल थाड़ थरड़ा हकीकत हनो तवक्कल तंग कढीस कुवत इल्ला बिल्लाह ई चाप कुछ खाईस मोहब्बत जे मैदान में टोरे टहलाईस इन्ही हाल हलाईस त सूधो वञे सैयद चवे।
تو اس لطیف سرکار کے سندھ پر اور پھر اس دریائے سندھ کہ جس کا اصل نام سنگھی دریا ہے اور تبت کی زبان میں سنگھی شیر کو کہتے ہیں، جو ہمالیہ کے پہاڑوں سے پانی گھومتا رلتا گاتا جھومتا جب تبت اور لاما کے پہاڑوں سے شیر والے اس غار سے نکلتا ہے تو اس لیے اس کا نام بھی پڑا سنگھی دریا، شیر دریا. اور وہ شیر دریا سندھو دریا جو بلتستان اور گلگت کے ماتھریوں میں وہاں میدانوں سے گھومتا ہوا میاں والی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہوتا ہوا 2-3 اپنے کلرز چینج کرتا ہوا پھر سلٹیڈ کلر میں سونے کے کلر میں جب سندھ میں داخل ہوتا ہے اور پھر اس پہ لکھنے والا ایک ایسا آدمی جو بانا وزیرستان کا ہو، جو یہاں سے بہت دور وزیرستان کا ابھرا ہوا سورج آج چمک رہا ہے سندھ میں. ہم لائق تحسین سمجھتے ہیں ڈاکٹر صادق اللہ خان صاحب کو. ہم ان کی ان کاوشوں پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بلکہ میں اگر اصل میں مجھے منع کیا گیا ہے کہ سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجبوریاں ہیں، کرنی بھی پڑتی ہیں کیونکہ حقیقتیں بھی ہیں، فیکٹس بھی ہیں، تو فیکٹ پہ تو آدمی کو بولنا بھی چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب کو وزیرستان کا سندھ کے لیے ڈاکٹر سورلے سمجھتا ہوں. مولا پاک ان کو سدا سلامت رکھے. یہ ایک اچھی بہترین فیلڈ میں بھی ہے، سی ایس ایس آفیسر بھی ہے، ویل کوالیفائڈ آدمی، اور پھر وہ سندھ کی پیڑا اور اس کا درد محسوس کرتے ہوئے اور پھر انگریزی میں لکھتے ہیں. تو پھر میں انہیں رابندر ناتھ ٹیگور بھی کہتا ہوں، کیونکہ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ ڈھلتے ہوئے سورج نے دھرتی پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا کہ کاش میرے بعد بھی کوئی ہے کہ جو اس دھرتی کو روشن کر سکے. تو دور بہت دور ایک ٹمٹماتے ہوئے دیے نے جواب دیا کہ I will try my best. میں کوشش کروں گا. تو جو کوشش ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہے، ہم آپ کو ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. میں پوری سندھ کی نمائندگی نہیں، پورے پاکستان کی، کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ ہے کہ جس کے دل میں وطن سے محبت نہیں ہے وہ برباد ہے. میں اس ملک سے محبت کرتا ہوا اس ملک کا، وطن پاکستان کا ایک ایسا عاشق جو آپ کو آج خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ پاکستان نے ہمیں جو کچھ دیا اس میں ایک آپ بھی ہمیں مل گئے. آخر میں مصطفیٰ زیدی کا یہ آدمی کی گزرگاہ اس پر کچھ چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹاپک تھا اس کا یہ آدمی کی گزرگاہ. وہ بھی آپ کی طرح پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے کہا کہ صبح کی سیہ پا روشنی چھوڑ کر، مد بھری شام کی کمسنی چھوڑ کر، اوس پیتی ہوئی چاندنی چھوڑ کر، اس کے مکھڑے کی میٹھی نمی چھوڑ کر، زندگی آج تو کس طرف آ گئی. واہ 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 واہ. اس نئے دیش کے اجنبی راستے کتنے تاریک، کتنے پراسرار ہیں. پاس کے موڑ پہ کوئی راہزن نہ ہو، پیڑ کے روپ میں کوئی دشمن نہ ہو، یہ کھنڈر کوئی روحوں کا مسکن نہ ہو، زندگی آج تو کس طرف آ گئی. واہ 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 واہ. موتیوں اور چراغوں کے ہر تھال پر کتنے گجرے عقیدت کے حاضر کیے، چوڑیوں کی کھنک سے تیرے واسطے کتنے معصوم نغمے مرتب کیے، جن کو سن کر ستاروں کے ایک شہر میں کرشن کے ہاتھ سے بانسری چھٹ گئی. تیری ہر نیند کو، تیرے ہر خواب کو میں نے پریوں کی زلفوں کا بستر دیا، 9 عروسوں کی شرماہٹیں سونپ دی، لے کے گہنے تبسم کا زیور دیا. افسراؤں کے سینوں کے بھونچال سے حدتیں چھین کر تجھ کو پے کر دیا.
तेरे माथे पे गजलों से अफशां चुनी, तेरे होंठों को नज़्मों का झूमर दिया, उंगलियों को अजंता की सिन्नत गरी, अंखड़ियों को बनारस का मंजर दिया, एक तशबीह सोची कमर के लिए, इस्तिआरे तराशे नजर के लिए, जिस्म और खून से मावरा कह दिया और एक रोज तुझको खुदा कह दिया। सदा सलामत रहे डॉक्टर साहब, सदा सलामत रहे, आप जियो, जीते रहो, सदियों हजारों साल जीते रहो। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और लेडीज और जेंटलमैन, मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सुना, मैंने आपको बोर किया। थैंक यू वेरी मच।